आज अपनी वीडियो थोड़ी बड़ी है, 17 मिनट की है, तो कैसे करें? पार्ट्स में करें या फिर एक साथ सारी वीडियो देखेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे? बताओ। अभी अगर से तुम्हें पता है ना हम लोग क्या करते हैं इस इवेंट में, क्योंकि तुम ही नहीं हो, बाकी तो हाँ, मतलब सब मुझे अपने बता ही दो हैं। एक बार। एक मिनट। हाय विश्वा। हाय विश्वा। Hi. I don't think we have met, no? This is the first time you are coming on the event. I texted you on LinkedIn, Viva. Yes. Yeah. Right. Yeah, so I was just telling Akarshit, he's also for the first time on this event. So basically हम इस event में करते क्या है कि हम एक वीडियो देखेंगे YouTube पे जो हमने अनाउंसमेंट में शेयर करा है। उसके बाद हम उस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है जैसे फाइनेंस के ऊपर, तो जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे फिर हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस या हमारा क्या लर्निंग्स हैं उनको शेयर करते हैं आपस में, एंड देन बेसिकली इतना ही इवेंट है, स्ट्रीम एंड डिस्कस, राइट? तो मैं पूछ रहा था कि यूजुअली हमारी वीडियोस 10 मिनट के अंडर होती हैं, बट आज हमारी वीडियो है 16 मिनट्स की। तो किस तरीके से करना है, पार्ट्स में करना है या फिर एक ही बार सारी वीडियो देख लेते उसके बाद डिस्कस करेंगे? बताओ सारे, क्या करें? बता दो यार। पार्ट्स में भी कर सकते हैं वैसे, मतलब अगर कुछ मतलब कोई टॉपिक खत्म करने के बाद थोड़ी बहुत डिस्कस हाँ नहीं, वैसे तो वीडियो खुद में पार्ट्स हैं उसके, जैसे सेविंग्स अलग है, इन्वेस्टमेंट्स अलग है, सारा इंडिविजुअल पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। पार्ट्स में करें क्या? पार्ट्स में कर लेते हैं। चलेगा, पार्ट्स में भी अच्छा है। बाकी क्या कहते हैं? लिली, अपूर्व, हुसैन, पार्ट्स में करते हैं, पार्ट्स में सही रहेगा। वही पाँच में करते हैं। चलो फिर बढ़िया। एक मिनट देना, स्क्रीन करें। स्क्रीन दिख रही है? बराबर। Americans are wealthier than any people in the history of the world. Yet many are stressed out about their finances. Are people living beyond? मैं क्वालिटी कम कर देता हूँ, ना लैग करेगा सबके लिए। On their means, even though their incomes are relatively high? Are they maxing out credit cards and living paycheck to paycheck? Are they saving for unexpected expenses? Can you be financially secure even if you don't make a lot of money? Can ordinary folks invest in the stock market with manageable risk? The answers to these questions are the beginning of a checklist for what we call financial literacy. When you talk about the checklist of things that people need to understand to be considered क्या हुआ? बोला क्या? financially literate, I think it delves into a number of categories. It numbers into your basic everyday financial living, the basics of debt, and understanding just sort of what credit card debt means, what mortgage debt means, what a car payment means, budgeting, understanding money in, money out. It's stuff that really sometimes can seem very basic, but clearly is not. If you're not financially literate, then you have to worry about your spending. You have to worry if when you retire, you can meet your goals. It all starts with income. Income means the money you have coming in. How do you make your money? The law of comparative advantage comes in handy when making career choices. Figure out what you do well and enjoy that others value highly. I've worked very hard and built a successful business, and I don't have to worry anymore in my life about, your month-to-month bills and things like that. But that is true only because I did used to. I didn't have parents to give me money. I didn't have anything to fall back on. There wasn't a safety net. But what I did was rigorously plan and sort of set goals and then try to go about achieving them. You don't have to own a business to think this way.
Start thinking how you can make yourself more valuable to potential employers, coworkers, and customers. How can you do your current job better, even if it is a minimum wage job, internship, or volunteer position? Are you working harder than others? First one there, last one to leave, not texting while on the job. These types of choices help differentiate you from others, and they create value for you in the job market. Remember, in the real world, you don't get paid for effort, but rather when you create value for others. And managing that money is just as important as earning it. तो दो पार्ट हमने कवर कर लिया ना अभी। एक तो हो गया कि व्हाई इज फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पोर्टेंट, तो वहीं से शुरू कर लेते हैं कि तुम लोगों के हिसाब से क्यों जरूरी है। वैसे काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल पूछना नहीं चाहिए पैसा जरूरी क्यों, बट फिर भी जरूरी था। कौन बनेगा करोड़पति वाले विनर जैसी हालत हो जाएगी अभी। क्या हो जाएगी? कोई तो भी कौन बनेगा करोड़पति का विनर था, वो वहां पे आने से पहले बहुत मतलब कुछ नहीं था बैंक में, वहां केबीसी में आया, करोड़ जीता, अब वो बहुत गरीब हो गया है, लिटरेसी नहीं है। हाँ मैं पढ़ रहा था, बैंकक्रप्ट चला गया था वो, 5 करोड़ जीता था शायद वो। हाँ ऐसा ही कुछ था। हाँ अच्छा, मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल लिटरेसी का वो स्टैंडर्ड है कि जिंदगी में 5 करोड़ आए तो रोड पे नहीं आना है। और दूसरी बात, कंसीडरिंग मेरी अभी जवानी चढ़ रही है तो मैं बहुत जल्दी स्पेंड कर दूंगा, तो थोड़ा पता रहे तो ठीक रहेगा। अच्छा, कि कितने लोगों ने यहाँ पे मतलब दे हैव अर्न्ड देयर फर्स्ट पेचेक या मतलब वैसा, कितने लोगों को पहली सैलरी या वैसा कुछ मिला है अभी तक? मेरे को मिल चुका है लग इंटर्न पे, और फ्रीलांसिंग में एक दो कर दो मिलने की कोशिश है। ना कुछ नहीं। हाँ दक्ष, कौन सा दक्ष है? ये संत कुमार, संत भाई कोई और है? मैं ही हूँ। अरे लैपटॉप से हूँ ना रिकॉर्ड करने के लिए। लिली अपूर्व, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस फर्स्ट पेचेक या वैसा कुछ? कुछ नहीं है मेरा। कुछ नहीं मिला इतना दर्द क्यों था इसमें? अच्छा, मतलब बेसिकली यहाँ पे सारे लोग अभी तक फर्स्ट पेचेक नहीं मिला ना सबको, तो जो अपना खर्चा होता है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? ज्यादातर 2 तरीके होते हैं, या तो घर वाले मंथली एक्सपेंस देते हैं, जो लोग कॉलेज में होंगे उनके साथ शायद से ऐसा होगा कि मंथली एक्सपेंस मिलता है, या फिर नीड टू नीड बेसिस पे कि अभी 100 चाहिए, अभी 200 चाहिए, अभी 500 चाहिए, उसी तरीके से। तो कैसे चलता है बताओ यार, कुछ तो थोड़ा तो। उनको हिसाब देना पड़ता है और कुछ नहीं। पाई मेरी मम्मी का सिंपल है, मुझे हफ्ते के 500 रुपए मिलते हैं, उसमें घर वालों के लिए दवाई, सब्जी, पूरा किराना आएगा, उसमें से अगर कुछ बच जाता है तो मेरा है, और मैं क्या करता हूँ, जो भी बच जाता है उसमें से 10% में सेव कर देता हूँ अपना एक छोटा सा, मतलब पिगी बैंक नहीं है, सेटअप बॉक्स का खड्डा वाला डब्बा था, तो मैं उसमें डाल देता हूँ, और मैं एक कॉपी में लिखता हूँ कि आज मैंने इतने पैसे डाले, बस। हाँ, तो वो होता है अपना। विश्वास, तुम कुछ कह रहे थे कि तुमने हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का दर्द वो कर लिया, छू लिया तुमने, तो जरा एलैबोरेट करोगे? तो माय कॉलेज इज इन चेन्नई, ओके, तो मैं उधर रहता हूँ, तो मंथ टू मंथ होता है मेरे लिए, तो बट वही है, वहां पे स्पेंड हो ही जाता है, एक बार बाहर जाओ तो काफी ज्यादा स्पेंड हो जाता है, एंड देन वो नीड टू नीड हो ही जाता है फिर कन्वर्शन। सो देन लाइक बिफोर लॉकडाउन आई केम अप विद दिस कांसेप्ट की suppose I get X amount, let's say I get 2000 per month, so set 500 aside, मतलब वो वॉलेट में कहीं छुपा दो या कहीं पे छुपा देता हूँ मैं, ठीक है, सो आई कैन नॉट यूज इट, ठीक है, एंड फिर वो एंड ऑफ द मंथ में मतलब वो धीरे धीरे करके ऐड हो जाता है। तो ये मैंने लॉकडाउन में भी शुरू किया, ठीक है, एंड इससे मैंने काफी सेव किया। सो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने ऐसे सोचा है।
एंड दूसरा मेरे ख्याल से ये भी है, जब से यूपीआई आया है ना, तब से वो पेमेंट काफी इजी हो गया, तो वो स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है यूपीआई की मदद से, हमें पता नहीं चलता, बहुत इजी हो जाता है। पहले वॉलेट होता था तो वॉलेट लेके ना निकलो, वॉलेट तुम रूम में ही भूल जाओ, then you won't be able to spend. So this is the one thing which I came up with to yeah 17 के पेमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। आकर्षित, दक्ष, लिली, तुम्हारा किस तरीके से मैनेज करते हो तुम फाइनेंस वगैरह जितना भी है? हाँ मेरा तो ऐसा होता है कि मतलब मैं खुद बड़ा कंजूस आदमी हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मैं खाने के अलावा बाकी किसी चीज पे पैसा नहीं खर्चता हूँ, मतलब कभी भी। बस मेरे को खाने को मिल जाए बढ़िया, मतलब मैं खाने पे मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, मतलब अगर मेरे को खाना है तो मैं खाऊंगा ही, बाकी मतलब किसी भी चीज पे रेजिस्ट कर सकता हूँ। तो जनरली मतलब कभी ऐसे रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाई नहीं, क्योंकि खाने को छोड़ के बाकी सब मैं मतलब अवॉइड कर देता हूँ। मतलब कोई भी मजा छोड़ दूंगा, बस खाने के टाइम नहीं। खाना तो और ऐसे कभी जैसे तुम्हें पता है कि इस महीने मेरा बर्थडे और दोस्तों को पार्टी देनी है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हो? सेव करते हो कि घर वालों से मांगते हो? जैसे लिली कह रही है कि जितना चाहिए उतना मांग लो एंड वो मेरा मतलब मैंने बर्थडे पार्टी जितनी बार भी दिया ना, मैंने मतलब ऐसे किसी के साथ मिलके दी है। तो मैं दूसरों का कार्ड देता था तो सीरियसली मतलब इन चीजों में मतलब बहुत ज्यादा मैंने जहाँ जितने बचा सकूं बचा देता हूँ, मतलब खुद को फायदा होगा सबसे ज्यादा। हाँ बाकी तो मतलब बाकी हाँ ऐसे मतलब ऐसे घर वाले अकाउंट में डालते हैं यूपीआई। वही ना, यूपीआई जब से आया ना तब से वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि फूड भी ऑर्डर कर रखते हो तो वो 1 सेकंड में हो जाता है, वो थोड़ा इश्यू है। बाकी मैं कहूँगा कि बाकी तो ऐसा नहीं हुआ वैसा कभी भी कि मतलब हाँ नहीं, क्योंकि मैं तो ज्यादा कॉलेज में भी नहीं रहा ना, वैसे वो भी प्रॉब्लम है शायद। कॉलेज में शायद 1 सेमेस्टर था, तो उस टाइम भी ऐसा कुछ हुआ नहीं मतलब कभी, बट तो यही था। बाकी मेरा जब मैं 12th तक तो मैं पेरेंट्स के साथ ही था, तो उस टाइम तक तो जैसे लिली कह रही है वैसे ही मेरा था कि जितना पैसा घर वालों से चाहिए उतना मांग लिया, मिल जाता था, राइट। जब कॉलेज गए तो फिर घर वालों ने बोला ठीक है महीने में हम, तो फर्स्ट ईयर में हमने एस्टैब्लिश नहीं करा था, मैंने और मेरे घर वालों ने, कि मंथली हम रखेंगे। वो तब तक वैसा ही चल रहा था कि जितना चाहिए उतना मांग लो। तो फर्स्ट ईयर के बाद जब हिसाब लगाया तो वो अमाउंट इतना ज्यादा बन चुका था कि जो मैंने खर्च किया था, क्योंकि हर हफ्ते पैसे मंगवाओ, फिर पैसे मंगवाओ, फिर पैसे मंगवाओ, तो फिर घर वालों ने डिसाइड करा कि हम मंथली भेजेंगे। अब वो मंथली वाला भी ऐसे कहीं भी खर्च हो जाता था, तो तीसरे हफ्ते तक तो सब खत्म। तो मंथ एंड में वैसे घूम रहे कि 10 रुपए की चाय भी पिला दे कोई तो उसमें खुश है। उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई एक तरीका है कि जो करंट इनकम सोर्स है उस पर रह लेते हैं, या तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढते हैं, उनमें से जो पैसा आता है उसको बचाते हैं, और जहाँ पे जरूरी है, जैसे अगर कभी ट्रिप बनानी है तो उसके लिए पैसे बचाने पड़ेंगे, या फोन नया लेना है तो उसके लिए पैसे बचाने पड़ेंगे, जिसमें घर वाले उतनी जल्दी नहीं मानेंगे। तो उस तरीके से फिर बेसिक सेविंग का कंसेप्ट आया। बट हाँ, जैसे सब कह रहे हैं ना कि यूपीआई में जब तुम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो उतना फील नहीं होता कि भाई पैसा कितना दिया है। जब हाथ से कैश देना वो अलग फीलिंग है, उसमें अलग से पता चलता है कि अच्छा इतना पैसा जा रहा है, तो वो कम खर्चा होता है अगर हार्ड कैश दिया जाए तो। दक्ष सर आपका कुछ? मेरा तो कॉलेज में ये सीन था कि लाइक ठीक है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत खर्चा हुआ था, फिर मैंने भाई सेकंड ईयर से मैंने काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया था, लाइक बहुत ज्यादा कंट्रोल था मनी पे, ठीक है। और ऐसा भी कुछ मंथली नहीं था मेरा, जैसे वो पॉकेट मनी टाइप कुछ होता है, मेरे को काम होता था ना तो मंगवा लेता था मैं, मतलब लाइक थोड़ा बहुत भी जो भी था तो भेज देते घर वाले, और ऐसा कुछ हिसाब का भी सीन था। बट मैं सेकंड ईयर से मैंने काफी कंट्रोल किया था सर। अभी कॉलेज के बाद तो जो इंटर्न के थे उनका काफी कैश फ्लो मैंने कंट्रोल किया है, और उसी से पता चल रहा है भाई मेरा कैसे पेट चल रहा है। तो काफी सेविंग्स भाई जरूरी है, थोड़ा बहुत कैश फ्लो का मतलब बैलेंस रखना काफी इम्पोर्टेंट है। दक्ष सर आपको कुछ शेयर करना? Then we'll move to the next part. Same as Lily. ये बढ़िया, चलो ठीक है। Expenses are money going out. How do you spend the money you've earned? Do you even know where all your money goes? Many people don't.
If I could only teach to young people today just one financial literacy skill, a necessity that people understand, is to construct their own financial budget and how they execute upon that. All I mean by this is to understand that there are fixed expenses. They have $3,000 that comes in, and they have $2,500 of expenses. They need that fixed expenses, the stuff they have to, your rent, your car payment, your whatever the case may be. They need that number to be lower than what's coming in. I think the easiest way is the 50-30-20 rule, which is 50% of your monthly income goes towards bills and housing. 30% goes towards finances, which is paying off debt or saving, and the final 20 goes towards entertainment or going out for things that you like to do. So obviously the fixed have to come first, and you chip those away, and those get done, and then applying percentages to the rest. I think there's very little of that goes on. Some of the things that go wrong when one doesn't do it, and this is of course very common, you end up living your life in a way of you're always playing catch up. And it becomes very debilitating when someone gets behind. They may have the benefit of the consumption, then a new paycheck comes, a new bonus comes, and they don't get to enjoy the fruit of it because they're paying off the last toy that they purchased. And so you live behind instead of forward. I think that has a profound impact on one's stress level, but also just their capacity for the enjoyment of life. If people just started with that, the layering of financial priorities in their month-to-month cash flow planning, I think that would be the immense first step towards financial literacy. Assets are stuff you own. Everything from your savings. So now we have discussed budget, जो कि I think सबसे important part यही है ना? तो I'll start off first. तो basically पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि मंथ का जो पैसा आएगा हम क्या करते थे, जैसे सपोज करो 5,000 आ रहा है, तो 5,000 खर्च कर दिए पहले 3 हफ्तों में ही, उसके बाद लास्ट 4th हफ्ते में जो खर्चा करना वो किसी दोस्त से उधार ले लिया. तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो नेक्स्ट मंथ का 5,000 आएगा उसमें से पहले तो दोस्त को उधार वापस करेंगे, तो इस महीने का पहले ही कम है और 3 हफ्ते का स्पेंडिंग तो 5,000 ही है, तो वो 3 हफ्ते की जगह अब खत्म हो जाएगा सपोज करो 2.5 वीक्स में. तो अब मेरे को 1.5 वीक्स के लिए उधार लेना है किसी से, एंड अगर मैं 1 साल तक ये साइकिल रिपीट करूंगा तो मेरा डेट जो है, मतलब मैंने जितना उधार लिया लोगों से वो बढ़ता जाएगा. इसलिए बजटिंग इंपॉर्टेंट है. तो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, तो जो जैसे इन्होंने बताया 50-30-20 रूल, तो जितना भी पैसा मेरे को महीने में आता है उसका 50% तो जैसे कि घर का सामान लाना है, रेंट देना है, बिजली के बिल देना है, ये सब में चला जाता है. तो वो इनिशियली मंथ के फर्स्ट वीक में भी खत्म हो जाता है. उसके बाद जो रेस्ट 50 बचता है, तो मैंने ऐसा कर रखा है कि ऑटोमेटिकली 5th ऑफ एवरी मंथ वो मेरा जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है अलग अलग जगह वहां पे शिफ्ट हो जाता है. तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, क्योंकि अगर वो मेरे अकाउंट में बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं खर्च करने का तरीका बन जाता है. तो इस तरीके से मैं बेसिकली उसको वो करता हूँ, बजट बना के, फिर बाद में जितना बचता है उसको जहाँ खर्च करना है वहां कर सकते हैं. तुम लोग किस तरीके से अपना बजट बनाते हो? एंड लाइक तुम्हारा अगर कोई सपोज करो तुम्हारा प्लान है कि 6 महीने के बाद किंडल खरीदना है या आईपैड खरीदना है या फिर प्ले स्टेशन खरीदना, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अचीव करने के लिए तुम किस तरीके से काम करते हो? कोई भी बोल दो यार. हाँ, मैं बोलूंगा. तो लाइक जैसे मैंने जब कॉलेज हुआ था 2018 में, तब पहले ईयर में तो ऐसे ही था कि कुछ चाहिए होता था तो घर पे फोन किया एंड देन ऑर्डर कर लिया. बट फिर देन सेकेंड ईयर से वो थोड़ा बहुत समझ में आया, तो देन आई स्टार्टेड लाइक जैसे मैंने बताया 500 रुपये अलग रख दिए, राइट. तो वो यूपीआई से डील करने से जगह पे आई यूज्ड टू मैं कैश में कन्वर्ट कर लेता था जितने मेरे को सेव करने, ठीक है, एंड देन वो छुपा लेता था मैं, बाकी पूरा यूपीआई से ट्रांजैक्शन. तो इतना छोटा छोटा करके हर महीने, एंड देन इतने महीने बाद आई कैन बाय दिस और आई कैन बाय दैट. तो वही एक कॉन्सेप्ट समझ आया, तो मैं तो ऐसे करता हूँ. बाकी वही हुसैन, आकर्षित. अभी तो कुछ पैसे आते ही नहीं है तो मैनेज करने के लिए, तो इसमें कोई नॉलेज ज्यादा है भी नहीं मुझे.
बट स्टिल अगर कोई फाइनेंशियल गोल हो, जैसे 1 साल बाद कुछ लेना है, तो उसके लिए क्या करते हो? कोई इनकम सोर्स भी तो होनी चाहिए उसके लेने के लिए, नहीं तो पापा से पूछ लो। नहीं, हाँ, अच्छा। वो है। बट लाइक जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जो पॉकेट मनी इनको मिलता है उसमें से कुछ परसेंटेज बचा लेंगे, एंड मंथ एंड या ईयर एंड तक वो इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि उसका कुछ वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसा अभी कोई करता है क्या यहाँ पे? अब अभी मेरा क्या सीन है कि मैं तो कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो अच्छा, हाँ, जो मंथली मिलता था वो अब नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हारा खर्चा ही क्या हाँ, हुआ फिर, तुम बाहर तो जा नहीं रहे हो हम्म, कॉलेज, तो वो तो नहीं मिलता। अगर कुछ चाहिए तो पूछ लो, बस उतना ही है। हम्म, नहीं तो जो पहले बचा अच्छा, था उससे कुछ ले लो अगर चाहिए तो। हम्म, हम्म, इंटरेस्टिंग। पहले तो भाई कॉलेज में थे तो कुछ भी बहाना बोल के ले लेते थे पैसे। अब तो हाँ, भाई कॉलेज भी गया, ऑटो बस में वही, अगर जाना कुछ है। कुछ भी चाहिए हो ना तो थोड़ा बहुत भाई पैसे इनकम बनाओ और सेविंग्स करो, उसी से खरीदो। वही रिमोट क्लासेस ने सब खराब कर दिए। है। आकर्षित, अपूर्व, कुछ तुम्हारा बजटिंग टिप्स हो तो? हो अरे गए भाई, गए। मतलब मेरा मतलब बजट में तो ऐसे मतलब मैंने तो वो पहले बोला ना, मतलब खाने के अलावा हर चीज में रोक लूंगा, बस खाने वाला कहीं कंट्रोल भी करना बता सकता है तो बस ठीक बता दो। हाँ, बट स्टिल मतलब अगर जैसे पता है मंथ एंड में कहीं बड़ी पार्टी पहलवान जाना है, तो उसके लिए हाँ, सेविंग करते हो कि डायरेक्टली जितना जरूरत है उतना एडजस्ट कर लेंगे? मैं पूल कर लेता हूँ ना। अच्छा, 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 तुम्हारी अलग टेक्निक है। मतलब लिली और नहीं मतलब अपूर्व की अलग ही। हाँ, हाँ मतलब मेरा कुछ ऐसा मतलब वो वही ना, जैसे पार्टिकुलर वही एक बात तो हम कैश फ्लो नहीं है कि इतना कैश फ्लो नहीं है कि मैं कुछ वैसे बजट बनाऊं अपने लिए हाँ, नॉर्मल, मतलब क्योंकि सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कॉलेज इतना गए नहीं, हम्म, अभी घर पे पड़े हुए हैं तो पड़ी हुई है। एक हिसाब से तो मतलब हाँ, हाँ ऐसा कुछ वो नीड नहीं लगती करने की, बट करना चाहिए मतलब, क्योंकि हाँ मतलब ऐसे सोच रहा हूँ तो कितनी जगह से पैसे बचा सकता था, मतलब खाना अवॉइड कर सकता था, घर पे बना हुआ था बट फिर भी ऑर्डर किया जोमेटो से। तो हाँ मतलब इम्पोर्टेंट है, ये लगता है सोच के कि रियली, हाँ, रियली, जैसे आपने रियली। बोला ना कि 6 महीने बाद किंडल खरीदना है, तो मतलब हम्म, सोचने तो हाँ खरीदा जा सकता था शायद, अगर हम्म, सही जगह सेव किए होते तो हाँ। हम्म, करेक्ट। लिली, अपूर्व, तुम दोनों एक साथ बात करो, तुम दोनों चैट एक बंद ही दूसरे कर को दो। बोल रहे हो। हाँ, चैट में बातें कर रहे हो। बोलो, बोलो, दोनों बोलो, एक साथ बोलो, दोनों का एक साथ माइक ऑफ करो, दोनों बात करो, दोनों भाग जाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अरे तुम्हें तो आ रही है, इन दोनों को पूछ रहा हूँ मैं। ओ हाँ, सॉरी। पूर्व ही बोल रहा है शायद। हाँ, पूर्व बोलो। कुछ नहीं है बोलने का मेरे पास, पैसे बिल्कुल भी नहीं क्या? है, बजट वगैरह कहाँ से करूंगा। अच्छा, नहीं बट स्टिल घर से थोड़ा बहुत तो मिलता होगा ना, जैसे हम लोग क्या करते थे, जब हम रिश्तेदार के घर जाएंगे तो हमें पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत, हम उनको बचा लेते थे, या वैसा कुछ कुछ है तुम्हारी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स? कुछ भी नहीं है, बस थोड़े बहुत पड़े हैं, बहुत पहले के कुछ खर्च करने के लिए भी नहीं है, तो बस वो पड़े के पड़े ही हैं। अच्छा, एंड लिली तुम्हारा? अब तो अपूर्व ने भी बोल दिया। Hello, can you hear हाँ me? जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, बोलो। क्या बस ये बोलना था कहने फिर में? अरे भाई, चलो ठीक है। साउंड चेक हो रहे हैं। लेकिन ये मेरे को ऐड करना है कि ये जो रिश्तेदारों का बोला ना, ये काफी सही चीज है। मतलब हर साल वो उतना अमाउंट आ जाता है हर साल में, मतलब दैट्स अ फिक्स्ड अमाउंट यू विल हाँ, गेट एनीवेज। तो वो एक हाँ, काफी सही चीज है इंडिया में। भाई फ्रीक्वेंटली जाते रहना चाहिए। मिलते रहना चाहिए एग्जैक्टली। रिश्तेदारों को, जो ज्यादा पैसे दे उनके पास तो जाना चाहिए भाई।
मेरा तो यही फंड है। अब तो देना बंद कर दिया लोगों ने, अब इसलिए जाना बंद कर दिया, लोग मांगना शुरू कर देंगे। अब चलो रेड्यूस ठीक होके है। 101 ही हो गया ना बस। ठीक है, एसेट्स, अब एसेट्स पे भी आई डोंट थिंक ज्यादा डिस्कस करने के लिए होगा, बट चलो फिर भी Account शुरू to करते a हैं। house to a car. The road to building assets starts with saving. The best reason I can offer for why even a high school student with a part-time job should start saving to some degree, just the habit. It's habit forming. That I believe that there is something to be said that for the merit of just getting in the practice of putting aside $5 a week, $10 a week, whatever the number may be. Save regularly for unexpected expenditures. You know that your car will need a repair, your cell phone may get stolen, and you may fall ill. I like to set up a savings account so I don't see that money, because if I see it, then I will spend it. So each paycheck, I take out a certain amount of money towards my bill for my car insurance at the end of the year, and it's automatically moved to the savings account. So that your paycheck hits your account and then automatically you have your bank account set to send from your checking account to your savings account, or just electronically off the top. You make your savings a fixed expense. It has to come straight out of your checking account. You're paying yourself first. And when that's in place, it opens up a lot of freedom to then go do other investment accounts. This approach will help you live a life with minimal financial stress and anxiety. It'll help you avoid financial troubles and pitfalls. As you build some savings, make sure to diversify your investments. Remember, never put all your eggs in one basket. Just don't. Because if that one basket should fall, well, you get the picture. When you purchase a stock on the exchange, you're buying into a small piece of that. आई थिंक अब हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आ गए, उससे पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि सेविंग का, जैसे उसने बोला कि एक हैबिट फॉर्मिंग होता है, राइट। जैसे हम सब यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम लोगों के पास अभी उतना इनकम स्ट्रीम नहीं है, हमारे पास उतना इनकम सोर्स नहीं है कि हम लोग पैसे बचा पाए, राइट। एंड तो इसलिए हमने बजटिंग या इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है। बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अभी से स्टार्ट करते हैं ना, तो वो एक ऐसी हैबिट है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट करती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब, अब जैसे तुम कह रहे हो ना, तुम सब कह रहे हो कि अभी उतना इनकम सोर्स ही नहीं है, जब इनकम सोर्स बहुत ज्यादा होगा तो उसके बाद सोचेंगे बजटिंग का, तो भी वही कहते हैं। एंड वो अभी कमा रहे हैं, फिर भी स्टिल दे हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, स्टिल वो ये कहते हैं कि अभी इतना पैसा आता ही नहीं है तो क्या सेव करें, इसलिए जस्ट वो गो विद द फ्लो वाली बात हो जाती है। बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप आज सेव करना, सपोज करो तुम दिन के 10 रुपए भी बचा रहे हो यार, तो ईयर एंड तक वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। और बहुत बार हम लोग अपने खर्चों का ट्रैक नहीं रखते हैं। तो जैसे मैं क्या करता था, मैं जब नया नया शिफ्ट हुआ घर से बाहर, तो मैं बहुत ज्यादा स्विगी करता था। मंथ एंड में सारे पैसे खत्म, तो मैं सोचता था कि पैसा कहाँ जा रहा है, राइट। तो एक दिन में बैठ के मैंने नोट डाउन करा अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को कि कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है। तो वहां से मुझे पता चला कि ह्यूज चंक ऑफ दैट मनी वाज गोइंग इनटू स्विगी ऑर्डर्स और उन सारी चीजों को। तो एटलीस्ट मेरे को पता चला कि अगर मेरे को थोड़े पैसे बचाने तो मैं वहां से कट डाउन कर सकता हूँ, राइट। इसलिए बजटिंग और सेव करना इम्पोर्टेंट होता है ना। तुम लोगों का कुछ कहना हो इस चीज पे? मुझे बार बार धक्का मारना पड़ रहा है सबको बोलने के लिए। सेविंग्स तो होनी चाहिए। जैसे कॉलेज टाइम पे भी अगर मान लो किसी की फिक्स पॉकेट मनी है ना, तो कभी भी लाइक कोई भी काम पड़ जाता है, जैसे कोई कॉलेज की कोई पार्टी हो या कोई डीजे नाइट टाइप हो, तो अब मान लो अपने को अपना लाइक बजट आउट ऑफ बजट हो गया, तो थोड़ी बहुत सेविंग्स अगर पहले की हो ना, तो ऐसी चीजों को लाइक हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए वो चीज सही है। लाइक स्टार्टिंग में अपने पास अगर पॉकेट मनी आ रही है तो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट अपन रख सकते हैं कहीं सेव करके, लाइक वो आगे अपने को काम आ सकता है, ऐसा कुछ। करेक्ट। हुसैन तुम कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था, जब मैं 11th और 12th में था तब तो पैसे मिलते थे, तब मैं क्या करता था कि मैं पापा को बोल, जब एग्जाम्स था यूजुअली तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन बस ही था मेनली, जो बस पास बन जाती है वही था। पर जब एग्जाम्स आए तो हम क्या करते थे दोस्त लोग, के पापा को बोलते थे कि ऑटो के पैसे दे दो, पढ़ना है, ऑटो में पढ़ के चले जाएंगे। पर मैं था हरामी, मैं क्या करता था, ऑटो से नहीं बस से ही जाकर वो पैसे बचा लेता था।
हाँ और फिर जो कुछ मनपसंद फ्यूचर में लेना हो जो अभी तक डिसाइड नहीं है पर सेव करके रख देता था। जो एक हैबिट फॉर्म होती है वही मेन है। जितना तुम सेव कर रहे हो वो डजंट मैटर कि तुम कितना सेव कर रहे हो। इट्स द करेक्ट हाँ हैबिट तुम्हारी सेव करने की। हाँ करेक्ट मतलब एक बुक है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम सारे जरूर पढ़ना, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं एग्जैक्ट नाम, बेबीलोन करके कुछ नाम है बुक का। तो उसमें कंसेप्ट है कि मतलब मनी को कैसे ग्रो करना एंड हाउ डू यू डील विद वेल्थ। तो वहां पे एक कंसेप्ट है कि टू बिकम रिच यू हैव टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। तो बेसिकली उसका कंसेप्ट क्या होता है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं अपना टाइम रेंट आउट करते हैं एंड देन वी अर्न मनी। बट ज्यादातर लोग जो मतलब अपनी वेल्थ को सही तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वो ये करते हैं कि अपने पैसे से पैसा कमाते हैं। तो हाउ डू यू डू दैट? उसका बेसिकली मतलब है कि तुम पैसे को ऐसी जगह लगा रहे हो जहां वो डबल हो रहा है टाइम के साथ, rather than तुम अपने टाइम को स्पेंड करके और पैसा कमा रहे हो एंड देन उसको कहीं भी स्पेंड कर रहे हो, है ना? अभी तो सेविंग करने का हाँ ट्विटर पर भी एक थ्रेड पड़ी थी कि उसमें लाइक बताया था कि ये सब जो है ना ये पुराने फिक्स डिपॉजिट अब ये तरीके काम नहीं आते। लाइक अगर आपको वेल्दी होना है ना, मतलब आप एक ही जगह पे रहोगे अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो ना और आपको लाइक वेल्थ सच में क्रिएट करनी है तो ये सब इन्वेस्टिंग या फिर जो अदर चीज है ना वो आपको करनी पड़ेंगी सिमिलर, तभी आप अभी मॉडर्न सोसाइटी के पैरेलल में चल पाओगे। अगर आपको लीन वेल्थ क्रिएट करनी है तो इन्वेस्टिंग हो गया और ये हाँ दक्ष भाई आ चुके हैं। हाय दक्ष भाई, क्या हाल चाल? अरे भाई क्या बात, बढ़िया सब कुछ? सब बढ़िया सब बढ़िया, क्या हाल चाल? बढ़िया सर बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अभी बस अरे हम पैसे आजकल की तो बात कर रहे थे। अरे पैसे की बात कर रहे हो? बताओ सर, आप कुछ ज्ञान दें हमें। कौन से पैसे के बारे में बात कर रहे हो? यूएस हम बात कर रहे हैं सेविंग, बजटिंग, इन सारी चीजों के बारे में। बताएं आप। गिव मी अ सेक, गिव मी अ हाँ सेक। श्योर श्योर श्योर। चलो तब तक हम अब नेक्स्ट पार्ट आ चुका है वीडियो का, विच इज बेसिकली स्टॉक्स एंड हाउ डू यू इन्वेस्ट इन देम। तो उनके उसको देख लेते हैं। company. So you're getting an interest in that company and you're becoming an owner of that company. And it entitles you to the stream of profits that company hopefully will make in the future. It has risk because the company may not make it. So the stock market is a way of funding business in America that carries with it an appropriate level of risk and reward. The best way for somebody to invest in the stock market with a small amount is by purchasing an index fund or an ETF or a mutual fund, because they are getting broad exposure to many different companies instead of just buying one position. What's all this talk of index funds and mutual funds? A mutual fund is a professionally managed investment portfolio that pulls money from all sorts of investors like you who are looking to diversify their investments. It's the easiest way to ensure you aren't putting all those eggs in one basket. Index funds, or exchange-traded funds, ETFs, are similar except that they are managed to match the performance of a particular group of companies, say, a group of tech companies or a group of consumer goods companies. Instead of picking individual stocks, I want to own Apple and I want to own Nike, they might just buy an index that includes a whole basket of these companies together. There's all kinds of different indexes and therefore index funds out there. The most common might be the S&P 500, representing sort of 500 major publicly traded U.S. companies. With diversification, you can take comfort in knowing that when the value of one asset is down, others will likely be up. But they want to make sure that the purpose of the money they're putting in is longer term money. The return of the stock market's been very good over time, but there's periods of time where it can be quite volatile. And so that's where one's financial literacy will hopefully lead to them understanding what instruments are good for short-term goals, what instruments are good for intermediate goals, and then longer term. One powerful tool in your plan is compound interest. Albert Einstein once stated, Before we go to compound interest, let's talk about investing. तो अब अभी तक theoretically हम जहाँ तक पहुंचे हैं वो है basically हमने पैसा बचा लिया, हमने budgeting करा and हर महीने some chunk of our money is being saved, right?
अब उस मनी को, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें अपनी वेल्थ को, अगर तुम सपोज करो, मैं बोलता हूँ कि जैसे हम लोग पुराने डेज में करते थे, हम लोग क्या करते थे, एक पिगी बैंक ले लेते हैं, उसमें पैसे डाल के रख रहे हैं, राइट? बट वो सबसे बेकार तरीका है सेविंग करने का। कोई बता सकता है क्यों? कौन सा? एनीबॉडी? मतलब पिगी बैंक में पैसे बचा के रखते हैं ना लोग, तो व्हाई इज दैट द वर्स्ट? या मतलब कुछ लोग अलमारी में कहीं रख देंगे इंटरेस्ट नहीं पैसे, या मिलता जब ना, तुम्हारा पैसा वैसा का हाँ वैसा, ये इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हारे वैसा का वैसा पड़ा है तुम्हारे आइडिया। करेंसी पैसे की डेप्रिशिएट वैल्यू करती है भी ओवर द कंटिन्यूसली। टाइम गिर जाती अरे है। भाई, अब सब बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछे तो सब बोलते, क्लासरूम बना लो, डिस्कशन में कोई नहीं बोलता है। हाँ, एक एक करके बोलो प्लीज, कोई भी। करेंसी की क्या वैल्यू हो जाता है? डेप्रिशिएट कर रही है और आपका पैसा कांस्टेंट है। अच्छा, हुसैन करेंसी की वैल्यू क्यों डेप्रिशिएट कर रही है? क्योंकि जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, पता नहीं, मैंने हम्म, क्लूलेस वीडियो में देखा था, जो तन्मय हाँ में हाँ हाँ, समझा रहा था कि ओवर द इयर्स पैसे की वैल्यू गिरती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है। करेक्ट। ओवर द इयर्स इन्फ्लेशन बढ़ता है। देखो, सपोज आज 100 रुपए की दाल आ रही है, कल अगर हम्म, 5 years डाउन द लेन देखेंगे तो 200 रुपए की दाल आएगी। पर आपने तो करेक्ट, बस 100 रुपए ही सेव किए थे ना दाल के लिए, कि जो मैं पांच करेक्ट, साल हाँ, बाद खरीदूंगा। तो बिल्कुल वो सही। फायदा ही क्या सेव करने का अगर तुम खरीद ही नहीं रहे हो फ्यूचर में। हाँ, अपूर्व, व्हाट इज इन्फ्लेशन, अगर समझा सको तो? इन्फ्लेशन से क्यों, मतलब 500 रुपये मेरा 500 क्यों नहीं रहेगा 10 साल बाद? मुझे नहीं पता। क्या? मुझे नहीं पता, कुछ उपाय बता दो, कर दो। नहीं पता, मेरे को बस इतना ही सुना दिया, बाकी अगर लैग मैं हो गया। बताऊँ तो हाँ हुसैन प्लीज। एक तो देखो, दो तरीके होते हैं। एक कॉस्ट होता है, जो ओवरऑल प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट, और जो ये डिमांड और सप्लाई होती है। कॉस्ट में हम्म, क्या होता है, जो रॉ मटेरियल से लेबर्स है, वो भी ओवर द टाइम उसका प्राइस बढ़ता रहता है। हाँ हाँ, कोई भी कम प्रॉफिट में तो काम नहीं करेगा, एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट तो चाहिए उसको सरवाइव करने के लिए। तो उसकी वजह हम्म, से प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ता रहता है, इट्स नेवर कांस्टेंट। और दूसरा हम्म, क्या होता है, सपोज एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी ले लो आप, जहाँ सब पैसा कमा रहे हैं, सबके हम्म, पास जॉब है और सब पैसा कमा रहे हैं, तो क्या होगा, हम्म, उस इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी। हम्म, डिमांड, सबको चाहिए कि मैं गुची के कपड़े पहनूं, ये कपड़े पहनूं, तो उसकी हाँ डिमांड ज्यादा होगी। वेराज हाँ, जो सप्लाई है वो बहुत कम होगी। तो उसकी वजह से करेक्ट, क्या होगा, जो डिमांड है, डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंपनी क्या करेगी, प्राइस बढ़ा देगी कि कुछ डिफरेंस सप्लाई में आ जाए। तो उससे वजह से उस वजह से भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ सकता है। करेक्ट। हाँ, तो बेसिकली सबको समझ आ गया ना क्यों वो जो 1000 रुपये मैंने अपने गद्दे के नीचे दबा के रखे हैं, वो 10 साल बाद 1000 नहीं रहेंगे। इतना सबको समझ आ गया। बेसिकली मेरे को अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ वो एनुअली किसी परसेंटेज से ग्रो करे, राइट? यस। सबको समझ आ गया ना? तो यहाँ पे वो बेसिकली, तो अब जनरली हमारे पास कन्वेंशनली सबसे अच्छा तरीका होता है कि बैंक में अपने पैसे रख दो। जो हमारे से पहले वाली जनरेशन थी वो बहुत अच्छे तरीके से करती थी कि सारा पैसा एफडी में या फिर बैंक में आराम से रखा है, तो वहां पे वो आराम से बैंक 4% देता है। बट वो 4% भी तुम्हारे पैसे के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट है 6%, 6 से 7% के बीच में होता है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन 6 से 7% से हर साल बढ़ रही है, एंड तुम्हारा बैंक सिर्फ तुम्हें 4 से 5% दे रहा है, तो तुम्हारा पैसा हर साल क्या हो रहा है, 1% कम हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे आता है फिर इक्विटी, या फिर जैसे नवल कहता है कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट और ओन अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। किसी भी बिजनेस का तुम्हारे पास अगर पार्ट है तो तुम अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, राइट? अब हमने डिस्कस करा म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स कौन समझाएगा? कोई भी? विश्व, प्रणय, प्रणय तो पता नहीं किससे बात कर रहा है, म्यूट पे लगा हुआ है। आकर्षित, कोई भी समझा दो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स का मेरे को जहां तक पता है, लाइक उनकी स्कीम्स होती है जहां वो अलग अलग कंपनीज के स्टेक्स में मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लाइक तो उनकी काफी सारी स्कीम्स हैं, उनके बेसिस पर वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपने को रिटर्न लेते, तो उससे कुछ 15%, अब पहले नहीं था, अभी उस पर टैक्स भी लगा दिया मेरे ख्याल से। म्यूचुअल फंड पे भी टैक्स है अभी शायद। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। लिली, अगर तुम्हें आइडिया हो, विश्व, आकर्षित, कोई भी समझा दो।
बेसिकली म्यूचुअल फंड मतलब जैसे एक इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड में कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स आते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ अपनी इक्विटी मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की इक्विटी होल्ड करती हैं। तो मतलब वो एक किस्म की सेफ बेट होती है, क्योंकि वो किसी एक एक्सपीरियंस एनालिस्ट ने स्टॉक्स पे किए होते हैं उस अच्छा। फंड के लिए, पूरे फंड के लिए। तो मतलब मान लो एक पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट उन्होंने उठा के रख दिया था अलग से, मतलब जो ठीक है। जो हाँ उसी के साथ चल रही है, बट उसमें कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं। जैसे पूरे इंडेक्स फंड में जितने भी स्टॉक्स होंगे सब इंक्लूड हो जाएंगे, सबकी वैल्यूज जिस तरह चेंज होगी उस तरह से इंडेक्स फंड की वैल्यू चेंज होगी। वैसे ही उन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की वैल्यू जैसे चेंज होगी, उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू जैसे चेंज होगी। विश्व, व्हाट डू यू थिंक? मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसका, बट जितना मेरे ख्याल से, आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, ये जैसे बताया इन्होंने कि बेसिकली हमें तो कुछ आइडिया नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, राइट? सो हम बस पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है वो हमारे पैसे के साथ अच्छे से खेल के एंड दे गिव अस गुड अमाउंट बैक। या दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मुझे पता है कि रिलायंस बढ़ेगी, राइट? रिलायंस फ्यूचर में एक्सेल करेगी, वो ग्रो करेगी। तो अगर मैं रिलायंस में अपना पैसा लगाता हूँ तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है? अब क्या है कि रिलायंस का सपोज करो एक स्टॉक का कॉस्ट है 1000 रुपीज, ठीक है? अब सपोज करो मेरे पास 1000 रुपए नहीं, मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितने लोग, 8 लोग हैं, 8 ही हैं, हाँ हम लोग 8 लोग हैं। हम 8 लोग बोलते हैं हम अपना 150 रुपीज डालते हैं और हम लोग एक साथ मिलके रिलायंस का एक स्टॉक खरीद लेंगे, ठीक है? तो ये होता है म्यूचुअल फंड बेसिकली। म्यूचुअल फंड मतलब हमने सभी ने थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डाला एंड वी बॉट वन शेयर और मल्टीपल शेयर। तो डिपेंड करता है एसेट मैनेजमेंट। सपोज करो तुम सारे अपने पैसे मिलके मेरे को देते हो तो मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो जाऊंगा। जैसे कि आईसीआईसी है, एचडीएफसी का होता है, एसबीआई, सबका मतलब बहुत सारी कंपनी एसेट मैनेज करती हैं, लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, लार्ज अमाउंट्स में वो इन्वेस्ट करती हैं अलग अलग कंपनीज में। तो सपोज करो यहाँ तो मैं सिर्फ रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ में तुम सबके पैसे लेके एक स्टॉक में रिलायंस का ले लूंगा, एक स्टॉक में टीसीएस का ले लूंगा, एक स्टॉक में महिंद्रा का ले लूंगा, राइट? एंड उसका जो जो रिटर्न आएगा मैं हम सब में जिस परसेंटेज में हमने इन्वेस्ट करा था उसी परसेंटेज में डिवाइड कर दूंगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली क्या है, इसमें कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होगा। जैसे मैंने बोला ना म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स में बेसिकली क्या है, इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो सारी हैं, राइट? तो जब मैं सेंसेक्स में पैसा लगा रहा हूँ तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि वो टॉप 100 कंपनी के स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ। या जो निफ्टी है वो टॉप 50 कंपनीज, राइट? इंडिया की जो भी टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी है, राइट? तो अगर उसमें पैसा लगा रहा हूँ तो वो टॉप 50 कंपनीज पे एक साथ में पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है? समझ आया सबको? हाँ भाई। ठीक है, तो समझ आ गया बेसिकली म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड या इन सब पे हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं लगाना पैसे रेदर देन बैंक या एफडी। क्योंकि बैंक एफडी तुम्हें 4 से 5% देगा एनुअली एंड इन्फ्लेशन 6% है। तो तुम्हें कहीं भी अगर तुम्हें अपना पैसा लगाना है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम कहाँ लगाना चाहते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि इन्फ्लेशन से एटलीस्ट 4% ज्यादा हो वो। तो अगर इन्फ्लेशन ईयरली 6% है तो तुम्हें ऐसी जगह पैसा लगाना है जहाँ पे उसका ग्रोथ रेट एटलीस्ट 10%, 11%, फिर वहां से जितना मर्जी ऊपर जा सकते हो। ज्यादा ऊपर जाने में दिक्कत यह है कि ज्यादा जितना रिटर्न रेट होगा उतना वो रिस्कियर होगा, राइट? अगर तुम 15 से ऊपर जाते जाओगे, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे 20%, 23% तुम्हें मिलेगा, बट उसमें पैसा नेगेटिव में जाने के या स्टॉक को टैंक करने के चांसेस भी होते हैं, राइट? इसलिए यू हैव टू प्ले सेफ। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डिवाइड कर लेंगे, आधा पैसा 10% वाले रिटर्न पे लगा लेंगे, आधा 15 पे लगा लेंगे और बाकी थोड़ा सा किस पे 20 पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से डिवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट? एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है जो कि होता है स्टॉक मार्केट और गोल्ड के बीच में। लोग गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना? कोई बता सकता है कि क्या इंटरेस्टिंग रिलेशन है, इफ समबडी नोज अबाउट इट? मुझे तो नहीं पता। आई गेस डेट का सीन होता है, क्योंकि जैसे गोल्ड है तो मतलब गोल्ड एक मतलब एक स्केर्स रिसोर्स है, तो उसकी वैल्यू कभी नीचे नहीं जाएगी, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एक हिसाब से। तो मतलब उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज हो, जैसे करेंसी है तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हमेशा करनी है। तो लोग इसलिए शायद गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मतलब इन्फ्लेशन से हमेशा ऊपर रखता है उसको, बार को। हाँ, तो स्टॉक, हाँ गोल्ड इज बेसिकली सेफ बेट, ठीक है? सबसे सेफ बेट है गोल्ड।
क्योंकि उसका क्या है, पैसा बढ़ेगा, गोल्ड महंगा ही होगा जिंदगी भर, कम नहीं होने वाला है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो बेसिकली क्या होता है, गोल्ड और स्टॉक मार्केट का इनवर्स रिलेशन होता है मोस्ट केसेस में। तो अभी करेंटली क्या है, गोल्ड नेगेटिव में जा रहा है एंड स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, राइट? क्योंकि अगर लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। बट जब मार्केट टैंक करेगा तो लोग बोलते हैं हम अब सेफ इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, तब वो फिर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइट? इस तरीके से इनवर्स रिलेशन है। तो वहां पे भी तुम्हें क्या करना होता है, तुम डिवर्सिफाई कर सकते हो, थोड़ा पैसा स्टॉक में लगा लो, थोड़ा गोल्ड में लगा, ताकि जो भी बढ़े वहां से तुम वो कर सको। हेलो सर। हाँ मतलब जैसे इसके आगे तो और भी ज्यादा वो हो जाता है ना वाइड, जैसे मतलब और भी बड़े, जैसे बॉन्ड यील्ड, यूएस की बॉन्ड यील्ड करेक्ट। कितनी है, तो मतलब हाँ अगर जैसे हाँ अभी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो मतलब लोग पैसा बॉन्ड्स में शिफ्ट कर रहे हैं अपना, गोल्ड को छोड़कर, तो इस वजह से गोल्ड की प्राइस भी नीचे आ रही है, मार्केट करेक्ट एक्सपोर्ट, करेक्ट मतलब करेक्ट। काफी सारी चीजें हैं फैक्टर इसमें। दक्ष सर, आप कुछ शेयर करें, बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, कुछ भी आपके क्या इन्वेस्ट थॉट्स इन हैं? क्रिप्टो। क्रिप्टो में भी आते हैं सर, पहले आप बेसिक तो समझा लो, डायरेक्ट बिटकॉइन। टॉपिक दो ना, ऐसे थोड़ा ना, मेरे को क्या पता क्या चल रहा है। सेविंग्स पे बात करते हैं, हाउ डू यू मैनेज योर मनी, आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरा बहुत अलग तरीका है ब्रो, मेरा लोग पसंद नहीं करते तरीका जो मैं यूज करता हूँ। फिर भी बता दो सर, क्या आई हुआ? हैव 4 बैंक अकाउंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अच्छा, हाँ, एक में सो पैसा आता है और बाकी 3? आई मीन अलग अलग में अलग अलग जगह से आता है, बट लाइक so one is for my daily day-to-day payments, one is like long-term savings that I don't touch, one is company का account, and other is ऐसे ही रख रखा है कि कभी काम आ जाएगा। कोई account नहीं, because UPI goes down ना at random times, so you need another backup account to help you. So like I have like 4 accounts, but like it's really not recommended to do that. Just keep one account and save it properly. एंड हाउ डू यू इन्वेस्ट, आप किस तरीके से डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हो? ऐसा तो नहीं सारा बिटकॉइन में लगा रखा है? नो ब्रो, बिटकॉइन में नहीं लगा रखा है, बिटकॉइन में बहुत कम लगा रखा है जितना लगाना चाहिए। बिटकॉइन में लेस देन 1% लगा रखा है नेटवर्थ, it's like pretty much negligible. I have another currency called Matic. So अगर मेरा Twitter DP देखा है, Twitter DP में I'm wearing the shirt called Matic, right? That's a cryptocurrency. Correct. So I have like a good amount of Matic, but for investing in crypto I use WazirX, which is pretty cool, but like you should not withdraw from it. You just should use it for trading, nothing more than that. Don't withdraw because they charge an enormous amount of fees. So if I want to transact like 1000, if I want to withdraw 1000 Matic, it takes like 100 Matic away just in transaction fees. So it's like 10% I'm losing anyway. So yeah, don't use it. एंड बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए बाकी zero बिटकॉइन the के coin. अलावा? So अच्छा, I स्मॉल केस keep, वगैरह? no, sir, coin. I used to do small case and shit. I'm like, no, it's too much effort. Life does not need to be that complicated. Keep it super सर आप simple. समझा दो कि स्मॉल केस होता क्या है? Small case is like you choose multiple stocks and make a basket out of it, and every month you put to whatever you can SIP on it. So every month you can put that amount of money and it buys you that basket of all those stocks in one. And जो भी returns आते हैं वो average out होके आ जाते हैं, because one will go up, another will go down. You know, you add them, divide by 2, get an average return. Right. So I don't do small cases. I do mutual funds. Mutual funds में I have 70% in a liquid debt fund. So it's like it doesn't give you much high returns. It gives you like around 9%. But again, that money is safe. Then other 30% is in equities. So especially US equities, because I do something called dollar hedging. क्योंकि Indian rupees जो है वो हमेशा गिरता रहेगा डॉलर के अगेंस्ट, right? Because our economy is designed that way. Dollar will keep on rising. So if you invest in a US index fund, वो इंडेक्स फंड के रेट पे ग्रो करेगा 15 to 16% ओवरऑल, बट देन अगेन डॉलर का प्राइस भी बढ़ता है because of inflation, right? So you get like 4x 5x return on the same thing over a good 10-15 year time frame. So yeah, I do something like that. I do it using वो क्या बोलते हैं उसको, Nasdaq 100. So Nasdaq 100 is like an index fund, mostly focused on technology companies.
सॉरी फॉर द नॉइज यार, पीछे वेदांत शोर मचा रहा है। ओके सर, ठीक है। आना चलो अब आना हम आना आना। कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे। ओके, अरे रुको रुको एक Most सेकंड, powerful force in the universe. हाँ पुराने वो आए बताओ हमसे सर। मिलने, क्या बोलते हैं, दिस इज हेलो अभिराम। सर। Abhiram came हाँ in our विराम। first. Hi Abhiram. Yeah, this guy was in the first Keto Catch Up. So was I, and I don't think Vedant has ever been in a Keto Catch Up, and I don't think he's going to come right now. So, yeah. ठीक है, करें सर कंटिन्यू। Universe is compound interest. The best way to take advantage of it is to start saving when you're young and investing strategically after you have your real-world savings account ready. Over the course of 20, 30 years of compounding, it's adding hundreds of thousands of dollars. I'm saying for regular middle class families, the difference between starting to save at age 50 and starting to save at age 25 can be hundreds of thousands of dollars. And that's just simply from the benefit of time and allowing that money to work for them for a greater period of time. Even with all of the recessions and expansions of recent and distant past, diversified stock holdings have earned about a 7% real annual rate of return. Rate of return is extremely important. An asset earning 3% annually will double in value in 23 years. But an asset earning 7% will double in value every 10 years. Investing in the stock market offers opportunities for everyone. It makes such a difference when you can really exploit the time value of money, when you put time on your side. The leverage they get on that contribution to themselves because of the time value of money is monumental. And there's calculators that people can play with to go see, and they never believe the results. Simple interest would just work like this. You have $100, you earn 5%, you now have 105. And then you're going to make another 5% on that 100. Now you have 110, the next year 115, the next year 120. So that 5% is simply being applied to your original $100. Compounding means that your $100 goes into 105 for the first year, but then 5% gets applied to 105. And let's say that number is 111, and then it gets applied to that. So the numbers start to break apart from the original denominator of the money. And so that's why compounding carries with it just a real special force mathematically. I think that there is really no financial literacy when people don't understand time value of money. Liabilities are debts you owe. The time value of money can also work against you. A lot of people get into financial trouble by constantly we'll get into liability later. Simple interest, compound interest. बहुत complex but still very important. Somebody would like to explain simple interest क्या होता है? मतलब कोई एक अमाउंट है, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट बोलता है, एंड देन उसी अमाउंट पे हर साल पर कुछ रेट है तुम्हारा पर एनम, लेट्स से 2% या जो भी आर रेट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे उतना परसेंट हर साल तुम्हें मिलेगा. सो इट्स ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, जो पहले साल में जितना है उस पे ही मिलेगा. वेरएस कंपाउंड पे हर साल जो तुम्हारा जो बढ़ के आता है उस पे लगेगा. सो या एंड कंपाउंडिंग कोई भी और लिली अपूर्व, ये तो पता होगा तुम्हें, अब मत बोलना. कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. अपूर्व को सब पता है, वो नहीं बताएगा. हुसैन, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, अगर आप 100 रुपए डालो और एक मंथ में आपका इंटरेस्ट रेट 5 है तो वो 105 हो जाता है, और वही वो नेक्स्ट मंथ के लिए वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है. वेरएज सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द मंथ. सपोज आपने पहले मंथ भी 100 डाले, दूसरे मंथ का भी प्रिंसिपल 100 ही होगा सिंपल इंटरेस्ट में. वेरएज कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होके नेक्स्ट मंथ का प्रिंसिपल बन जाता है. करेक्ट. दक्ष सर, आप बताएंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे कुछ?
thinking of a good example. तब तक कोई और बता दो यार कि कंपाउंडिंग का मतलब इनिशियली मतलब कंपाउंडिंग ऐसे नेचुरली हमें समझ नहीं आती है, बट बहुत एग्जांपल मेरे को फिगर्स याद नहीं आ रहे कि इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग 5,000 per month when you're 30, तो अराउंड 65 जब तुम 65 के होते हो when it's time to retire, तो तुम्हारे पास अराउंड 2 करोड़ कुछ बन जाता है कंपाउंडिंग से, राइट? सिंपल सिर्फ अगर 12% 11% का तुम रिटर्न लेके चलो, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, रिलीजियसली हर महीने कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहना, शिफ्ट कर सकते हो जो मर्जी कर सकते हो। एंड बहुत लोगों को कंपाउंडिंग कितना यील्ड दे सकता है उतना समझ नहीं आता, राइट? बट इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही ये है कि पेशेंस, जितनी देर तक तुम उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हो एंड जितनी रिलीजियसली तुम लगातार उसमें पैसे डालते रहोगे। नहीं फॉलोअर 5 आते, बट अगर 500 हो तो अच्छा, हाँ करेक्ट करेक्ट। मतलब जैसे स्किल्स के ऊपर भी तो कंपाउंडिंग होता है ना, तो कोई समझा सकता है स्किल्स के ऊपर कैसे कंपाउंडिंग लगाते हैं? जैसे तुम जो स्किल सीखते हो, कोई तो बोलो यार। नहीं ठीक है, बोले जा आई रहा डोंट नो हूँ। इफ दिस इज परफेक्ट, बट हाँ, सपोज जैसे हाँ हम मतलब मैं कॉलेज में हूँ, सो मैंने कुछ सीखा हाँ कॉलेज में, एंड देन मुझे एक इंटर्नशिप मिली या मुझे एक जॉब मिला, ठीक है। अब वहाँ करेक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो उसकी बेसिस पे मुझे इससे भी अच्छा और जॉब मिलेगा, एंड देन मे बी दैट्स लाइक, आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस, बट स्किल्स वैसे ही ना। करेक्ट। हाँ दक्ष सर आप बताएंगे कुछ कंपाउंडिंग एंड हाउ डू यू कंपाउंड योर टाइम, या स्किल्स कैसे कंपाउंड करते हैं? भाई कोई तो बोल दो यार, मेरे को लग रहा मैं ही बोल रहा हूँ तब से। आज फाइनेंशियल वाला टॉपिक गलत ले लिया। सही बात है सर, कर लो थोड़ी मेहनत। चलो ठीक है, हम वीडियो का एंड देख लेते मुझे हैं। जॉब वाला पर्सपेक्टिव समझ नहीं आया वैसे। क्या जॉब वाला पर्सपेक्टिव समझ नहीं आया? मतलब ये स्किल वाला जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब कंपाउंड तो ऐसे होगा ना कि जैसे हाँ मतलब जैसे 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 हाँ वही कि आप कुछ ऐसा बना दो या डेवलप कर दो और फिर मतलब वो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे फैलता जा रहा है, यूज होता जा रहा है। जैसे कोई आपने पीस ऑफ कोड लिख दिया एंड हाँ वो हजारों लोग यूज नहीं कर नहीं रहे हैं, वैसे नहीं, 1 लाख लोग यूज मैं कर रहे हैं। लर्न मैं लर्निंग के उसके हिसाब से लर्निंग जैसे एक तरीका था, जैसे दक्ष ने कहा ना कि जब इनिशियली तुम स्टार्ट करते हो, सपोज करो तुम किसी भी सोशल स्पेस पे स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियली तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स सपोज करो 100 है, राइट? तो तुम्हारे 100 फॉलोअर्स पे डेली का 1-2 इतना बढ़ेगा, राइट? बट जब तुम से 10,000 फॉलोअर्स पे हो, तो डेली फॉलोअर्स जो तुम्हारे हैं वो बढ़ चुके होंगे ना। तो वो जो इनिशियल एफर्ट तुमने डाला एक एक अपनी प्रोफाइल बनाने में, वो सब बनाने में, वो लास्ट में पे ऑफ करेगा ना। उस टाइम पे तो स्टार्टिंग में तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 फॉलोअर 3 फॉलोअर ऐसे आएंगे, समझ रहे हो? या जैसे स्किल्स में होता है, इनिशियली जैसे सपोज करो मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो मैं एक एक टैग को समझने में इतना स्ट्रगल करता हूँ जब मैं इनिशियल डेज में होता हूँ, राइट? बट वो इनिशियल डेज का जो एफर्ट है या जो टाइम स्पेंड है, वो लास्ट में जाके मेरे को बाकी सारी चीजें समझने में आसान हो जाती है ना, क्योंकि मैंने बेसिक्स पे यहाँ उन सारी चीजों पे इतना ध्यान दिया है। समझ आ रहा है? एम आई मेकिंग सेंस? क्योंकि मैं स्किल बिल्डिंग की बेसिक पे, जैसे दक्ष कह रहा है कि तुम बेस बनाने में अगर अच्छे से टाइम स्पेंड करते हो, एफर्ट डालते हो, तो जब तुम लेटर स्टेज पे पहुंचते हो तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट समझना भी आसान हो जाता है। तो वो कंपाउंडिंग का ही तो वो है ना, क्या कहते हैं, मैजिक, पता नहीं। समझ आ रहा है या और कोई एग्जांपल के साथ ट्राई करूँ मैं? बोलो यार, कुछ तो बोल लो। समझ आ रहा है। हाँ करेक्ट। जैसे अगर एक बार तुम समझ गए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से चलती है,
तो चेंज करना वो आसान हो जाता है। हाँ मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं बट स्टिल हाँ सबको समझ आ गया। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे वीडियो के। कुछ तो बोल लो यार, फाइनेंस की कोई बात ही नहीं करना चाहता है भाई, अपूर्व क्या उठ हो के गया बात कर थोड़ा। दुनिया को, क्या हो गया लोग पैसे की बात नहीं करना चाहते। चलो ठीक है मोनिका हेलन को बुला लो, मोनिका हेलन को बुला लो, लेट्स टॉक मनी कर देगी वो। ठीक है spending more than they earn. Credit is readily available today. That's both good and bad. It's good because credit can enhance your ability to undertake attractive investments such as a college education or a home. I fundamentally believe that there's a key difference between buying something with credit that is an asset versus consuming something with credit. Okay, when you go to the pizza place with your friends and use money you don't have, you don't still have the pizza. It is really gone. Whereas when you buy a home, you are borrowing money, but you are purchasing an asset that retains some degree of value. And then assuming that the servicing of that debt, paying that person back with interest, is affordable, it enables you to buy a very expensive asset before you have to save for the whole amount. By being able to make a really sacrificial endeavor to save the down payment and take on an amount of debt that the service of which might even be less than they're paying in rent anyways, or maybe equal to it, then they're building equity. The other example has always been, we talked about student debt, where you're taking on debt, you're going to have to pay it off, but at least you're building an investment into a career, into a future, to education. But borrowing can be bad. When you borrow to buy things that will soon be of little value, use student loans to go on spring break, or max out credit cards only to pay the minimum amount due. When you recklessly spend more than you earn, your financial anxiety will build as your wealth declines, and you make large interest payments on items you've already consumed. As a general rule, paying for your vacations and your surfboards and your clothes shopping and your nights out with your friends with credit, well, clearly the asset is gone. You have zero of asset, but you still have the debit. So all you're doing is making yourself poorer by doing that. The avoidance of credit card debt early on is probably one of the great blessings a young person can ever give themselves. It's very debilitating to have to unwind significant credit card debt when you're really trying to get ahead and move forward in your adult life. It's going to make you a lot less financially secure because you're going to have stress and have to worry about your interest rates going up from not being able to pay off those cards every month. Someone could get to a point where they're literally spending over $1,000 a month and they're not chipping away at the debt at all. And I think that is what really ends up happening is you get used to the idea, I have a fixed expense of just making a credit card payment. I just paid $700, $800 a month for a credit card payment. And that could be a very high percentage of one's income. It ultimately leads to that kind of exasperation of feeling like you're never getting ahead. You get a raise, but you don't get to save or invest any of the money because you're still getting out from being, behind. The worst ramifications of excessive debt have always been emotional. They drain on people's joy. They add to their anxiety. But they take away hope. They take away from that feeling that you can move forward. So income is the money you earn. Maximize those earning opportunities. Save to build up assets, things you own. Put together a financial plan and limit your expenses and liabilities to things that increase assets or your ability. I think that summary ही थी वीडियो में. तो लास्ट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंसेस इज कि तुम अपना डेट किस तरीके से या तुम जो उधार है उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट्स में होता है ना वैसे जो तुम्हारा उधार है या जो तुम डेट लेते हो दैट आल्सो कंपाउंड्स, राइट. जैसे कि आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर या नहीं, तो जो भी लोन होता है उस पर कुछ परसेंटेज होगा. सबने सुना ही होगा कि होम लोन पे इतना परसेंट है, एजुकेशन लोन पे इतना है, कार लोन पे इतना, क्रेडिट कार्ड पे इतना. तो बेसिकली जो बैंक्स होते हैं या जो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके पैसे कमाने का एक ही तरीका है विच इज इंटरेस्ट. कि तुम हाँ इंटरेस्ट, राइट.
तो दैट्स व्हाई जैसे जैसे अब तुम लोग स्टार्ट करोगे ना पैसा कमाना, तो द नंबर ऑफ पीपल विलिंग टू लेंड यू मनी वो इंक्रीज होते जाएंगे, राइट? पीपल विल ऑफर यू क्रेडिट कार्ड्स एंड मतलब बैंक तुम्हें लोन ऑफर करेगा, गाड़ी ले लो, आईपैड ले लो, जो लेना ले लो, एंड द टेम्पटेशन टू बाय एनीथिंग ऑन ईएमआई इज रियल। मतलब एक बार जब तुम्हारे पास एक इनकम सोर्स आ जाता है and तुम्हें पता चलता है कि अच्छा अगर मेरे को मैकबुक लेना है तो मेरे को बस महीने के 3,000 रुपए देने हैं, राइट? एंड तुम सोचते हो ठीक है 3,000 रुपए लेने हैं, 1.5 लाख का लैपटॉप आराम से खरीद लेते, क्या जा रहा है? बट उस चीज को मेंटेन करने में एक पॉजिटिव थिंग, अच्छी चीज भी है और एक खराब चीज भी है। कोई एक्सप्लेन करेगा कि पॉजिटिव चीज क्या और खराब चीज क्या? किसको मेंटेन करना है? ईएमआई को? ईएमआई का। ईएमआई लेना अच्छा होता है, कैसे अच्छा होता है? ईएमआई लेना कैसे अच्छा हो सकता है? ईएमआई बेसिकली क्या है, आप पार्ट्स में पैसा दे रहे हो कंपनी को, और जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, अब कंपनी क्या देखती है, कंपनी कैसे कमाती है ईएमआई में? अगर आप एक पेमेंट डिफॉल्ट कर दो तो उस पे इंटरेस्ट लगता है, उससे कंपनी कमा सकती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे लिए कैसे अच्छा है वो? आकर्षित, अपूर्व, कोई ट्राई करना चाहे कि अगर हाउ डज टेकिंग ईएमआई हेल्प यू? मतलब एक तरीका तो है कि तुम्हें कोई चीज मिल रही है एंड तुम्हें थोड़े पैसे देने, वो तो एक एस्पेक्ट है, बट एक और बेनिफिशियल एस्पेक्ट होता है ईएमआई लेने का। ईएमआई का ये भी तो सीन है ना कि अगर मान लो अपने को एक एक्स अमाउंट लाइक बिगर अमाउंट से बचना हो तो थोड़ा बहुत अपन उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो लाइक हाँ नहीं, एक पार्ट तो ये है सर्टेन एक टाइम पे पता है क्या मेरे ख्याल से वो पॉइंट ये जहाँ जा रहा है कि नहीं मतलब जैसे सिक्योरिटी फैक्टर की तरफ, कि मतलब व्हेन यू आर पेइंग, मतलब जब आप ईएमआई पे कर रहे हो तो वो गुड जो है, जो भी चीज जो जिसके लिए भी हम ईएमआई दे रहे हैं वो कंपनी की भी है अभी। तो मतलब कुछ अगर उसको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मतलब वो जो तो वो फेज जाता है। जैसे लोन का, जैसे कार लोन में होता है ना, कार लोन में या होम लोन में होता है, तो होम लोन में अगर आपको घर लेना है तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बैंक करता है खुद से ही, वहां पे मतलब कोई एडवांटेज हो जाती है थोड़ी सी शायद, मतलब ईएमआई लेने का ये फायदा रहता है थोड़ा सा। और हाँ, अगर आपको उस टाइम पे ज्यादा बल्क अमाउंट नहीं, मेरे ख्याल से जब क्रेडिट लेते हैं हम, तो ये भी मैटर करता है कि हम क्रेडिट को यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने में यूज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज है वो। चीजें खरीदने में यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से मतलब ऐसा सोच सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज होती है सिबिल स्कोर होता है, राइट? सिबिल स्कोर होता है कि तुम कितने उधार देने लायक हो, राइट? तुम्हारी रेपुटेशन होती है फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में कि तुम, अगर तुम्हें उधार दिया जाएगा तो तुम वापस करने के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं, राइट? तो फ्यूचर में हर किसी को, क्योंकि कोई भी जैसे होम लोन लेना है, कार लोन लेना, उसको अप्रूव किया जाता है बैंक के थ्रू, राइट? तो सिविल स्कोर उसका एक जजमेंट होता है। तो ईएमआई लगाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि अगर तुम टाइमली ईएमआई पे करते हो तो वो तुम्हारे सिविल स्कोर को इंक्रीज करता है, राइट? दैट इज अ प्रूफ कि तुम्हारा अच्छा फाइनेंशियल पैटर्न है, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है, एंड यू आर एलिजिबल फॉर लार्जर लोन्स। अगर आज तुम अगर 1 लाख रुपए ईएमआई से पे कर देते हो तो तुम्हारा सिविल स्कोर इंक्रीज करेगा, एंड फ्यूचर में तुम 10 लाख 20 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हो सेम सिविल स्कोर के बेसिस पे, राइट? तो ये बेसिकली क्रेडिट स्कोर हुआ आपका। हाँ, सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर होता है, राइट? करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो वो तो क्रेडिट कार्ड में भी होता है। अब जब आप टाइमली पेमेंट करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाता है, बैंक आपको ज्यादा लिमिट ऑफर करती है। करेक्ट, हाँ, बस वही। हाँ, तो ये इसका गुड एस्पेक्ट है। इसका बैड एस्पेक्ट भी है ना, क्योंकि ईएमआई टेम्पटिंग हो सकता है, क्रेडिट कार्ड टेम्पटिंग हो सकते हैं कि मतलब भाई अभी पैसे खर्चने, पैसे बाद में देने, राइट? तो दैट इज अ वेरी टेम्पटिंग ऑफर, एंड बहुत लोग उस चक्कर में पड़ जाते हैं, एंड देन इट इज वेरी हार्ड टू रीपे इट ऑफ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे ऑलमोस्ट 30% का इंटरेस्ट लगता है अगर तुम पे ऑफ नहीं करते। 30% से तो ज्यादा ही का लगता है, राइट? मुझे क्या लगता है, ईएमआई एक्चुअली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो लेते ही क्यों हो? अगर आपके पास सपोज एक मैकबुक है और मेरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, सपोज मेरी सैलरी 40,000 है, तो वो मेरी सैलरी से भी ज्यादा है, थ्राइस द अमाउंट है, whereas I cannot afford that. आप ईएमआई नहीं ले सकते। अगर सपोज मैंने 2020 के स्टार्टिंग में प्लान किया कि ये
पूरा साल अच्छा जाएगा, मेरी इनकम सोर्स कांस्टेंट रहेगी। पर जैसे ही सपोज कोई पैंडेमिक आ गया, आपको जॉब से निकाल दिया, आपकी इनकम सोर्स तो रही नहीं। आप जो बचाया वो भी पूरा ईएमआई में ये कर दोगे, क्योंकि अवॉइड करोगे आपके इंटरेस्ट रेट। तो आप सपोज मुझे कुछ लेना है, सपोज मुझे एक फोन, और मेरी फोन एक 20,000 का लेना है, वो मैं ले सकता हूँ क्योंकि वो उसके पैसे मेरे पास ऑलरेडी है। करेक्ट। हाँ, तो बेसिकली तुम्हारी परचेज दो तरीके की हो सकती है ना। एक तो हो सकती है लग्जरी परचेज, मतलब जैसे आईफोन लेना है, राइट। अब आईफोन ही जरूरी थोड़ा ना लेना, फोन का काम तो कोई और फोन भी कर सकता है। तो वो 1 लाख खर्चना या 15-20,000 खर्चना फर्क है, राइट। तो एक होती है लग्जरी एक्सपेंस, और दूसरा होता है एसेंशियल या ऐसी चीज खरीदना जो तुम्हारे लिए एज अ टूल या एक एसेट बिल्ड करते हो। तो सपोज करो अगर मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है और फिर मैं बोलता हूँ मेरे को एक 60,000 की लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक लाइबिलिटी है, वो एक लग्जरी एक्सपेंस नहीं है ना। तो अगर वो मैं ईएमआई पे लेता हूँ एंड अगर मेरे को लगता है कि अपनी स्किल से मैं उसको पे ऑफ कर दूंगा, तो वो वाला ऑप्शन है एज टूल बाय करना किसी भी चीज को, तो दैट मेक सेंस। बट अगर मैं लग्जरी चीज खरीद रहा हूँ तो एक कॉमन थंब रूल ले सकते हैं कि अगर तुम 2 मैकबुक ले सकते हो तो एक मैकबुक ले लो, समझ रहे हो। चाहे फिर उसको ईएमआई पे लो या फिर फुल अमाउंट पे लो, बट एटलीस्ट 2 लेने के पैसे होने चाहिए। क्योंकि अगर मैंने आज 1 लाख रुपए का आईफोन ले लिया और कल उसकी स्क्रीन टूट गई, तो मेरे को 15,000 रुपए और चाहिए उसकी स्क्रीन लगवाने के लिए, तो फिर मैं दोबारा कहीं से उधार लूंगा सिर्फ स्क्रीन चेंज करवाने के लिए, है ना। जो तो उस आप तरीके से हम जो आप फ्रीलांसिंग का बोले वो एज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ। करेक्ट। हाँ, कि वो उस पे कमाएगा वो। ये हो सकता है कि अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आप ईएमआई ले सकते हो, कोई लोन ले सकते हो, वो कर सकते हैं आप, क्योंकि वो फ्यूचर में रीपे करेगा ही करेगा, करेक्ट क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर उसी बेट पे है। करेक्ट। हाँ, आकर्षित तुम कुछ कह रहे थे। बट मतलब वो भी है ना कि ऐसे, मतलब आप अगर आपको घर लेना है तो मतलब अपनी लाइफ ऐसे, किसी की लाइफ में ऐसे बैलेंस शीट भी की तरह भी रहना देखनी चाहिए। मतलब ये भी एक मतलब पॉइंट रहता है इम्पोर्टेंट कि बेशक मैं आज अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन शायद 10 साल में अफोर्ड कर लूं। और अगर मुझे कोई बट फिर उसमें तुम्हें ये देखना पड़ेगा ना, जैसे सपोज करो, तो जैसे सपोज करो तुम बैंक से 20 लाख रुपए का अगर होम लोन लेते हो, तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा ना कि जो ईएमआई बन रही है, तो सपोज करो ईएमआई तुम्हारी बनेगी 15,000 रुपए तुम्हें महीने के देने हैं, राइट। चाहे वो 10 साल का लोन है, जितने मर्जी का लोन है, तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि हर महीने एटलीस्ट मेरी इनकम उतनी रहे कि मैं उस इनकम में से ईएमआई भी दे दूं, उसके बाद अपना एक्सपेंस भी चला लूं एंड उसके बाद भी कुछ सेव कर लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरा अगर सैलरी 50,000 है तो 30,000 में ईएमआई दे रहा हूँ एंड रेस्ट मेरा खर्चा वगैरह चल रहा है एंड उसमें मैं कुछ सेव ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मतलब ऐसा कोई बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम्हें घर की जरूरत है तो वो इमोशनल वो भी हो सकता है कि भाई हाँ घर लेना है, या फिर वो स्ट्रेटेजिकली भी तुम वो कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। सकता है कि आपको एक एसेट ओन करना है। हाँ, घर एसेट भी हो सकता है। दो टाइप के लोग होते हैं घर खरीदने में। एक जो वो अपने यूज के लिए खरीद रहा हो, जो वो रहेगा, और दूसरे क्या होते हैं जो इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ लोग होते हैं। घर ले लिया, रेंट पर चढ़ाएंगे, उस पे कांस्टेंट इनकम आती रहेगी, वो इनकम को इफेक्ट नहीं करेगा। और फ्यूचर में अगर बेचना है तो वो ऑलरेडी एरिया देख के अप्रिशिएट होके बेच देंगे। तो इसमें भी 2 टाइप ऑफ पीपल है जो घर खरीदने में है। जो पर्सनल है ना, जो रहने वाला है, ऑफ कोर्स अगर वो लोन लेके कर सकता है अपना पूरा एक एसेट बिल्ड, तो वेल एंड गुड। क्योंकि होम लोन में आई गेस इंटरेस्ट ज्यादा होता है। नहीं, एजुकेशन से तो कम नहीं है, पता नहीं। होम लोन आई थिंक 8 से 9% के बीच में, एजुकेशन लोन 12 से 13% के बीच में। तो मतलब घर बनाना आसान है। घर की वैल्यू, मैंने सुना था कि बॉम्बे में घर खरीदना मतलब एक पूरा आपकी पूंजी चली जाती है घर खरीदने में। वेरी एक्सपेंसिव बॉम्बे में तो। आई थिंक कोई वीडियो थी जहाँ पे शायद से अंकुर वारिको की वीडियो, जहाँ पे वो बताता है कि घर खरीदने से घर रेंट करना सस्ता पड़ता है ओवर टाइम। वो फाइनेंशियली तुम्हें ज्यादा सस्ता पड़ेगा, तुम्हारे लिए बेटर रहता है।
बट स्टिल मतलब इंडिया में तो वैसा है ना कि अपना घर होना चाहिए, वैसा वाला वो नोशन है, तो हाँ मतलब सेंस जैसे घर बनाता वालों है। से बात करो ना कि आप रेंट पे ले सकते हो या आप कैब लेके ज्यादा सा खर्चा बचा सकते हो, पैसे बचा सकते हो, हाँ बट वो एक्सेप्ट नहीं करते उसी को, कहते हैं नहीं हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम जहाँ जीवन है वहां जाना चाहते हैं। तो मतलब वो समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है उनको, मतलब हाँ, ये भी एक मतलब बहुत पॉइंट है बार वैसे। फ्रीडम महंगी आती है ना सर, फ्रीडम महंगी पड़ती है हाँ थोड़ी। बट किसी भी वो चीज तो को वही चीज फाइनेंशियली हम वो कर सकते हैं, जैसे गाड़ी गाड़ी लेना ज्यादा सेंस बनाता है या उबर करना ज्यादा सेंस बनाता है। तो अगर मतलब वो फाइनेंशियल लिटरेसी इसलिए जरूरी है ना, अगर हम उस डिसीजन को एक एक्सेल शीट पे एक बार देख लें तो हमारा पैसा ज्यादा अच्छे तरीके से लग रहा है ना, रादर देन इम्पल्सिव डिसीजन कि भाई चलो गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर गाड़ी के साथ एडिशनल कॉस्ट भी तो आता है, ईएमआई अलग से देनी है, मेंटेनेंस अलग से देना है, पेट्रोल अलग से देना, तो फिर डज दैट मेक सेंस फॉर यू फाइनेंशियली, वो कैलकुलेट करना जरूरी होता है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ सपोज बिल्कुल बिल्कुल। आप एक महीने में बस 2 या 3 बार बाहर जा रहे हो तो उबर मेक सेंस, वेरएस गाड़ी डजंट मेक सेंस। आपको मेंटेनेंस जो करेक्ट। आपने बोला, पेट्रोल, वो वेरएस जो बंदा 30 दिनों में से 25 दिन बाहर जा रहा है, उसके लिए तो गाड़ी बेनिफिशियल होगी ना, क्योंकि अगर वो करेक्ट। पूरा उबर करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो उसको ज्यादा महंगा पड़ेगा कंपेयर टू, वो पूरा पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। रात को ठीक रहेगा, सुबह नहीं तो जल्दी, सुबह नहीं तो रात को। और किसी से बात कर रहे थे? हाँ वही, मतलब अपने हिसाब से हमें अपना बजट, वो फिर तभी ना पर्सनल बजटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड मतलब हमारे स्कूल्स में भी वो नहीं पढ़ाया जाता है, नोबडी टॉक्स अबाउट फाइनेंस, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट बजट कैसे किया जाता है, मेंटेन कैसे किया जाता है। एंड बिकॉज वो स्कूल का पार्ट नहीं होता, कॉलेज के करिकुलम का पार्ट नहीं होता, तो जब हम लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं तो एक दो साल तक तो पता ही नहीं चलता उस पैसे का क्या करना है। आई राइट, गेस हम लोग जब अपने घर वालों से पूछ रहे होते हैं कि क्या करें, एंड उनके लिए तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है बैंक, क्योंकि जो नए ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, और हम लोगों ने वो मेंटालिटी या वो फ्रेमवर्क ही नहीं बना पाए हम लोग। राइट, तो इसलिए जितनी जल्दी हम स्टार्ट कर सके दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ हुसैन कुछ कह रहे थे। मुझे क्या लगता है, जब से स्कैम 1992 आई है, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड मेनी पीपल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मेरा ही हाँ। केस ले लो, मुझे पैंडेमिक के पहले पता ही नहीं था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते थे, जीरो था क्या है, ग्रो क्या है, एंजल स्टॉकिंग क्या है, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। जब से स्कैम 1992 आए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा, फिर थोड़े वीडियोस देखे कैसे करते हैं, और फिर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे इन्वेस्ट करना है, पहले तो मैं ही खुद डाउट में था, ना इनकम है ना कुछ है, फिर भी कन्विंस करके कर रहा हूँ जो करना है। हाँ बट उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि लोग फिर ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा जल्दी डबल हो जाता है, एंड वो फिर वैसा वाला शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं। बट मतलब अगर स्टॉक नहीं मार्केट के नहीं, तुम्हें बेनिफिट्स लेने हैं तो वो लॉन्ग टर्म गेम है, रॉन्ग। और बहुत लोगों में पेशेंस नहीं है ना, वही तो दिक्कत है। पेशेंस इज लोग द सोचते की। हैं कि हाँ आज पैसा लगाएंगे कल निकालेंगे, बस डबल हो जाएगा एक ही दिन में, और फिर उस वो चक्कर में काफी नुकसान हो जाता है लोगों का। हाँ, वो क्या सोचते हैं मतलब कि पूरा पैसा लगा देते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होता हम्म। है। वेरस वो नहीं करना चाहिए, आपको स्मॉल स्टार्ट एंड देन गो बिग। वो बेसिक प्रिंसिपल्स की तो कमी है ना, मतलब पता ही नहीं है कि डाइवर्सिफिकेशन कुछ होता है, पेशेंस कुछ होता है, किसी भी एसेट को इवेल्युएट किस तरीके से करना है, वो सारी है ही नहीं। लोग सोचते हैं अच्छा, या तो लोग एक मेंटालिटी के होंगे कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, या होंगे कि यहीं से पैसा डबल होगा अगर होगा तो, जो कि दोनों ही गलत है। आई गेस एक हाँ कर। तीसरा बंदा आ जाता है जो कहता है पेशेंस से काम लो और कंपाउंडिंग करते जाओ। बट बहुत तीस कम है ना। हाँ, हाँ पर मुझे हाँ। क्या लगता है, अगर आप कर रहे हो पर मंथ इन्वेस्ट, आपका फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, आप आज है कल नहीं है, हम्म। तो अच्छा फिर तुम क्या। क्या कह रहे हो, नहीं करना चाहिए, आज की जिंदगी जी लो। हाँ, आज की जिंदगी जी लो, कल क्या होगा क्या पता। बट फिर भी ट्रांसफरेबल तो है ना वो, जैसे मतलब बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, तो फिर जो भी जैसे नेटवर्क या तो स्पाउस को जाता है, या तो पेरेंट्स को जाता है, या तो बच्चों को जाता है, तो उस तरीके से ट्रांसफरेबल होता है ना। पर नहीं इधर कुछ तुम्हारे थोड़ा में तो मतलब पर हंगर में रहने के लिए थोड़ी कह रहा है वैसे, मतलब कि हंगर में रहने के लिए थोड़ी, मतलब तुम बस उतना सेव कर लो ताकि इन केस
इन केस कभी कुछ ज्यादा कुछ खराब हो जाए बुरी हाँ हाँ 50-30-20 रूल तभी तो होता है ना कि 50 तुम अपना हाँ रेंट वगैरह वो सब दो, 30 तुम या तो सेव कर लो या तो अपने खर्चे वगैरह ऐश वगैरह जो तुम्हें करनी है कर सकते हो, एंड बाकी 20 तुम सेव करो। उस 20 को भी तुम डिवाइड कर लो, 10% सेफ में डालो, 5% हाई रिस्क में डालो और बाकी 5% बिटकॉइन क्रिप्टो जहां डालना है वैसे डाल लो। राइट, इस तरीके से तुम डिवर्सिफाई करो एंड हर महीने इस चीज साइकिल को रिपीट करोगे तो 10 साल 15 साल में कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना एटलीस्ट। वो भी है। 50-30 रूल में एक प्रॉब्लम क्या लगती है, जो 30-30% है वो आपकी वांट्स है। अगर आप थोड़ा ये कर लो कि हाँ अगर मैं ज्यादा डालूंगा तो फ्यूचर में मेरे लिए ही बेनिफिट है, तो आप आपकी वांट्स को थोड़ा कम कर सकते हो। हाँ Whereas वो फिर वो कॉन्टेक्चुअल हो गया ना। अब कोई बंदा वो बोलता है कि भाई मेरे को नहीं अपनी वांट्स कम करनी, मेरे को बोलना है कि आज ही जिंदगी जीनी है, क्या पता कल हो ना हो, जैसे तुम अभी कह रहे थे राइट कि कल का नहीं पता तो आज से ऐश कर ले राइट। तो फिर तुम उस 30 को अगर 40 करना चाहते हो वो भी ठीक है, अगर तुम 30 को 20 करना चाहते हो वो भी ठीक है। तो तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में क्या ज्यादा सेंस बनाता है उस तरीके के लिए उस तरीके से चल सकते हैं ना। ऐसा कोई परफेक्ट रूल नहीं, बस ये है कि हर महीने कुछ ना कुछ सेव करो, वो 10 रुपए हो बेसिक्स है, 100 हो जो भी, हाँ वो बेसिक है, हाँ करेक्ट। आप जितना मॉडिफाई करना हो कर लो। हम्म Whereas अभी क्या होता है, जब से वर्क फ्रॉम होम है या ऑनलाइन स्कूल है तो आपके थोड़े एक्सपेंस कम हो जाते हैं। Whereas ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जाना नहीं पड़ता, सोशल गैदरिंग्स कम हो गए। मेरे लिए क्या था कि इधर बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट जाओ बड़ी वाली पूरी पॉकेट मनी उठ जाती है, हाँ तो कुछ सेव भी नहीं कर पाते। उसकी वजह से कोविड आने की वजह से तुम सेव कर सकते हो। ऐसा बच गया हाँ कोविड। सोशल गैदरिंग्स हर कम हो गई, पाँच चल पैसे बन लेंगे। हर 5 साल में एक बार कोविड आ जाए पैसे बच जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं चाहिए। हम्म तो वो हाँ पर्सन टू कश्यप तुम कुछ कह पर्सन रहे, डिपेंड करता है। करेक्ट। हाँ मतलब कश्यप तुम कुछ कह काफी रहे थे, काफी हाँ सब्जेक्टिव सी चीज है वो, मतलब हर बंदे के लिए डिपेंड करे। वही जैसे आप बोल रहे थे कि हर बंदे को कोई पैसा कब उड़ाना है उसकी मर्जी ना वो। बस आपको हाँ पता होना चाहिए कि फंडामेंटल्स क्या है। बेसिक फंडामेंटल्स है कि डाइवर्सिफाई करना है, 50-30-20 रूल फॉलो करना है, इक्विटी ओन करनी है, ठीक है, इन्फ्लेशन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। ये 5-6 मतलब बेसिक बेसिक से रूल्स हैं, ये फॉलो कर लो कि इन्वेस्टिंग के लिए तो बहुत है। और ज्यादा ये डिटेल में रूल्स ये, आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि 3 हाँ महीने किया 5 महीने छोड़ दिया फिर से किया, करेक्ट। वो नहीं होना चाहिए। आप एक कंसिस्टेंट हैबिट में ही डाल दो कि ये करना है तो ये एसआईपी करना ही है। एसआईपी जैसे होती है, मतलब वो परफेक्ट होती है मेरे हिसाब से। हाँ एसआईपी रेगुलरली बहुत बढ़िया, एसआईपी सबसे किसी बढ़िया, हाँ आपको हाँ फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। ये थोड़ा आउट ऑफ मतलब हाँ टॉपिक किसी को क्वेश्चन है। एक्सपर्ट बनने की जरूरत थोड़ी है, मतलब कि प्रेडिक्ट करने के लिए कि टाटा का शेयर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। ऑब्वियसली गाड़ियां बिक रही हैं तो जाएगा ही, और मतलब रुकेगा नहीं। मारुति की गाड़ियां बिकी रही हैं तो मतलब जाना ही है ऊपर। हाँ करेक्ट। टाटा मतलब 10 अगर तुम 10 साल की गेम खेलते हो तो 10 साल में तो हर चीज बढ़ेगी ना, कम तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अब बट हमारे वही अगर आगे तुम पीछे। 1 साल, हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 आप। मैं कह रहा हूँ अब अगर तुम 1 साल की गेम खेलते हो तो 1 साल के बाद क्या पता टाटा बिल्कुल लो में हो, राइट, क्या पता बिल्कुल हाई में हो, कोई कह नहीं सकता। बट अगर तुम 10 साल 15 साल लेके चलते हो तो गारंटीड है कि आज जहां से तुमने शुरू करा उससे तो ज्यादा ही होंगे, एग्जैक्टली। है ना। क्योंकि हाँ हुसैन, ये हाँ कंपनीज तो तुम ये खत्म हमारे करना। आगे आगे हमारे आगे पीछे कंपनीज है ना, जो मतलब जो कल को मतलब बढ़ने वाली है। मतलब हमारे आगे पीछे हम करेक्ट। स्विचेस फैंस हैवल्स, हमें पता है हैवल्स कंपनी है, ओरिएंट कंपनी है। मतलब ये चीजें रहनी है यहीं पे, ये कहीं जाएंगी नहीं। तो करेक्ट। इसीलिए मतलब ट्रस्ट कर सकते हो इनमें तो ब्लाइंडली शायद। हाँ तभी बेसिकली तुम इंडेक्स फंड में पैसा लगा लो ना। इंडेक्स फंड बेसिकली क्या है कि जो कंपनी की किसी भी कंट्री की टॉप 100 कंपनीज, तो इंडिया की तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी ना 10 साल में। तो तुम अगर सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हो मतलब तुम इंडिया की ग्रोथ पे पैसा लगा रहे हो, तो जो बेसिकली 8% 9% से तो ग्रो करेगा ही, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उस तरीके से कर सकते हो। आप जैसे आप करंट न्यूज को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे अभी टेस्ला आ रहा है तो ईवी मार्केट पूरा आएगा ही इंडिया में। तो आप क्या कर सकते हो कि आप स्मॉल केस में जाके ईवी सर्च करके आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है और आप इन्वेस्ट कर करेक्ट। सकते हो। हाँ आपको भी एग्जैक्टली। थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि एसआईपी ही है, आपको थोड़ा हाँ नहीं एफर्ट। मतलब
अगर नहीं भी एफर्ट मेरे को नहीं न्यूज पढ़नी, मेरे को इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना, तो चुपचाप निफ्टी या सेंसेक्स का इंडेक्स फंड खरीद के बैठ जाऊंगा मैं। हाँ, जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख लो, नहीं तो हाँ मतलब आराम से उसके पोर्टफोलियो हम उसमें। देख सकते हैं इजीली, तो उसमें भी पता लग जाएगा कि हमें कि इस म्यूचुअल फंड, ठीक है आईसीआईसीआई ने इतना पैसा इन्फोसिस में लगाया है, तो मतलब हम भी इन्फोसिस में लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काफी चीजें लो रिस्क म्यूचुअल फंड 11 से 12% दे देता है, तो उसमें इजीली। आराम से लगा के बैठ जाओ। हाँ उसमें लगाते रहो, सिर्फ महीने का जितना देना देते रहो, एंड 10 साल 12 साल जितना भी लगा दिए, उसके बाद तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा कंपाउंड होके आ जाता है। एसआईपी में कंपाउंडिंग नहीं होती है ना? होती है ना? नहीं, एसआईपी में कंपाउंडिंग होती है, वो मतलब बेसिकली वही है, एक मिनिमम अमाउंट। हाँ, क्योंकि एसआईपी बेसिकली, हाँ क्या तुमने क्या? मैंने सोचा है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने सुबह ट्वीट भी हाँ किया था कोई एडवाइस के, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि जीरोधा में खोला हो या ग्रो में खोला हो अपना डीमैट। तुम्हें स्मॉल केस भी सही है, ग्रो, मैं तो दोनों यूज करता हूँ, मेरे को दोनों में ज्यादा डिफरेंस, मतलब स्मॉल केस में यह है कि तुम्हारे पास अलग अलग केसेस आ जाएंगे, बट स्मॉल केस के ज्यादातर केसेस थोड़े वैसे हैं, एक्सपेंसिव वाले हैं, कम अमाउंट के तुम्हें कम मिलेंगे, एंड ग्रो के पास म्यूचुअल फंड्स मेरा का ऑप्शन एम अच्छे है हैं। म्यूचुअल फंड्स में ही अभी डालने के लिए, क्योंकि हाँ जो हाँ मेरे पास थोड़ा बचा हुआ है मैं सोच रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में ही डाल दूं। आई गेस बेटर पता है क्या रहेगा, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो देख के ना, मतलब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, आजकल आप अपना खुद का ईटीएफ भी बना सकते हो ना, तो मतलब वो हाँ ईटीएफ स्मॉल बना केस पे के, अपना बना सकते हो। मतलब मेरे को पर क्या, इतनी मैं नॉलेज तो क्यों, है नहीं मैं मेरे पास। क्या चीज? अरे आप मतलब कोई भी स्टैक खरीद लो ना, अलग अलग स्टैक आपको ग्रो पे भी मिल जाएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी स्टैक अलग है उनका, इंडेक्स हाँ, फंड भी है उनके पास, तो कोई उसमें उसमें किसी पे भी इन्वेस्ट कर लो आराम से, जितना भी तो अमाउंट हाँ है वो मतलब सिप करना है या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है वैसे कर। वो भी है। और मैं क्या कहता था, अब सोच रहा था कि आप इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड तो सपोज निफ्टी तो 50,000 पे ही चल रहा है ना। तभी तो म्यूचुअल फंड करना है ना। नहीं, मतलब जो ईटीएफ होते हैं ना, मतलब वो छोटा सा पार्ट होता है, ऐसे जैसे कहते हैं ना, उसको स्क्वीज्ड पार्ट होता है उसका, किसी भी चीज का, तो मतलब शायद जैसे कितना अमाउंट लेना उस पर डिपेंड करता है, मतलब पूरा एक थोड़ी ले सकते हो, मतलब वो तो एक जैसे एक वैल्यू है, 50,000 पॉइंट्स है, वो रुपीस नहीं है सेंसेक्स की जो, मतलब म्यूचुअल फंड में तुम पूरा स्टॉक नहीं खरीदते हो ना, तुम्हारे पास तुम जितना सपोज करो तुम 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस 100 का तुम्हें 0.00 जो भी मिलेगा वो खरीदते हो तुम, तो वो मैटर नहीं हाँ करता कि वो कितने का है या कितने का नहीं है। एग्जैक्टली। बाकी तो हम्म सब काफी इंटरेस्टिंग है वैसे ये सब, ये वाला फाइनेंशियल मार्केट तो इस टाइम, क्योंकि हाँ मतलब पिछले एक साल में तो जो हर बंदे ने देख लिया एक्सपीरियंस करके, क्योंकि घर पे थे टाइम कुछ बहुत था था नहीं लोगों तो। के पास, लोग बोल रहे यही कर लेते, पैसे यहीं से आ जाए क्या पता। हाँ हाँ, हाँ मतलब जितना फ्लो लोगों का पिछले एक साल में दिखा है ना स्टॉक मार्केट में, उतना मतलब वही जैसे ज़ीरोधा का फाउंडर बोल रहा था कि बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं अब। करेक्ट। अच्छी बात है ये मार्केट के लिए है काफी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे हाँ उतना ज्यादा लूज करेंगे, और आप पहले तो अगर अगर आप खरीदना होता था तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़े होके पर्ची लेके खरीदते थे लोग, पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं था, अब तो बस क्या ऐप डाउनलोड करा आराम से वो सब हो गया, तो केवाईसी किया इन्वेस्टिंग सब। आसान हो गया। हाँ इन्वेस्टिंग आसान हो गई, ये अच्छी बात भी बुरी बात भी है। बुरी बात तो इसलिए है क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि आराम से पैसा डबल हो जाएगा, एंड मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा वो है ना, फॉल्स न्यूज है कि इस पे लगा दो इस पे लगा दो, एंड लोग सुन भी लेते हैं। हाँ वहीं पे मतलब लैक है ना, क्योंकि इनिशियली कोई फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं वहां पे कि किस तरीके से समझना है या क्या सारा गेम प्लान होता है। वही ना कि मतलब लोग बस उस पे ओके कि हुसैन, बाय बाय। कोई लोग आगे पीछे बोल रहे हैं कि कंपनी ऊपर जाएगी तो लोग लगा रहे हैं, वैसे कोई बैलेंस शीट नहीं हम्म देख रहा, कोई न्यूज नहीं देख रहा, बस मतलब वो नहीं होना चाहिए। बस जब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो कम से कम एक बार उसकी 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 पेनल स्टेटमेंट तो देख लो कि पिछले सालों में कैसे ग्रो किया है वो, या नहीं किया है, या क्या हुआ है। ब्लाइंडली भी नहीं लगाना चाहिए ना, मतलब जैसे लगा रहे हैं लोग, मैंने मतलब काफी मतलब हम्म। तो जैसे मैं जानता हूँ एक दो रिलेशन में, तो मतलब वो बस पता नहीं अजीब सी कहते हैं टिप, मैं कहता कौन सी हाँ टिप, तो जहाँ से बट जहाँ से टिप मिल जाती है। हाँ जैसे लिली कह रही है कि टेस्ला इस टाइम पे कितनी वो है, बिल्कुल हाई पे है,
हाँ तो वो भी उसकी वजह से ना, क्योंकि अमेरिका में दे प्रिंटेड अ लॉट ऑफ मनी, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो अब लोग बोल हाँ, रहे हैं कि चलो भाई कहाँ कहीं पे इन्वेस्ट लगाए। करें, तो टेस्ला पे चढ़ गए सारे के सारे। वही मतलब अब वो जो जैसे वो इतनी बड़ी इतनी गेम ज्यादा गेम वैल्यू के, हाँ हाँ बोलो गेम बोलो। स्टॉप वगैरह में हुआ था अभी, हाँ मतलब वो इतनी वैसा ज्यादा ये। वैल्यू क्रिएट कर दी है उस कंपनी ने, इतनी उसकी नेटवर्थ 600 बिलियन है। और मतलब देखो तो ग्राउंड पे तो कहाँ इतना ज्यादा, टोयोटा से ज्यादा है कि टेस्ला, मतलब वो देखे पता लग जाता है। करेक्ट करेक्ट। वही नेटवर्थ, वो तो मतलब ऐसे खोखली नेटवर्थ टाइप की चीज है वो, अरे अंदर कुछ है मतलब ही नहीं बिटकॉइन उसके। ही देख लो ना, इस टाइम पे बिटकॉइन देख लो आप, कहाँ पे है, 43 लाख पे है, कहाँ पे था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई, मतलब अलग ही। और बिटकॉइन का वही मतलब, बिटकॉइन भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब जैसे जैसे क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं, क्योंकि देखो मैं सोच रहा था कि करेंसी का थोड़ी हो सकता है कि करेंसी की वैल्यू थोड़ी मतलब इस तरह से इतनी इतनी खराब तरीके से ऊपर नीचे हो सकती है। ऐसा नहीं होना हम्म चाहिए बिल्कुल भी। तो करेंसी इस तरह से चेंज होते हैं, फ्लक्चुएट होने की, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हो जाएगी। करेंसी, बट क्योंकि डिराइव्ड वैल्यू है ना करेंसी की, करेंसी में अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हाँ इसलिए वो फ्लक्चुएट करती है। एंड वो फैक्टर्स जो है वो इतने सारे लोगों के हाथ में कि वो अगर वो उन फैक्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं तो करेंसी की वैल्यू मैनिपुलेट हो जाती है। तो वो एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट है वहाँ पे, कि मतलब लोगों को भरोसा ही नहीं है बैंकों पे या गवर्नमेंट्स पे या उन सारी चीजों पे, तो वहां से फिर बिटकॉइन निकलता है ना। जैसा डिसेंट्रलाइजेशन। 2008 में हुआ था, हाँ जब अमेरिका का सिस्टम क्रैश कर गया था, तो क्रैश हो गया उसी था के बाद तो बिटकॉइन, उसके उसी के बाद तो बिटकॉइन निकला था ना 2009 में आई थिंक, 9 में, पे वाइट 9 वाइट 8 पेपर 9। रिलीज करा था। हाँ हाँ करेक्ट। हम्म। बिटकॉइन पे डिस्कस कर सकते हैं वैसे, अगर आगे करना हो कोई तो थोड़ा बहुत आई देख थिंक के हमने आगे। एक बार करा था, अच्छा हमने करा था एक बार, दोबारा करेंगे। इस प्लान तो है, मतलब हम किसी बिटकॉइन एक्सपर्ट को लेके आने का सोच रहे हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस कि थोड़ा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जाना चाहिए ना, ऐसे हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे मैं तो थोड़ा बहुत वो भी। हाँ मैं एक वीडियो शेयर करूंगा उस पे, डिस्कॉर्ड पे करता हूँ वीडियो शेयर, मतलब वो हाँ मैंने देखी थी हाँ वीडियो, वो काफी अच्छी वीडियो थी, प्रॉपर एनिमेशन में था, और जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है और बिटकॉइन, तो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। 3 ब्राउन ठीक है, 1 ब्लू शायद नाम की, मैं करूंगा शेयर, वो शेयर कर शेयर दूंगा। कर दो आप। हाँ ठीक है। हम्म। काफी अच्छी वीडियो थी वो, उसमें मतलब काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है और बाकी अब और किसी को क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। अपूर्व, लिली, आई होप तुम लोगों को कुछ तो सीखने को मिला हो आज। अगर नहीं तो फिर आई एम वेरी सॉरी टू वेस्ट योर 2 आवर्स, जो तुम इमोजीज अपलोड करने में यूज कर सकते थे। अरे क्या बात है, क्या बात, बड़े दिनों के बाद। चलो ठीक है, फिर और मिलते हैं। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। अबे बाय बाय। हो गया, खत्म हो गया।